and welcome to Allied Marketing Learning Center. For most of you, a few people have been asking me about the organization, so I just very briefly touch base what we do and who we are. Basically, Allied Marketing is a distribution firm. We are primarily distributors for various multinational blue chip marketing companies, marketing global brands. We are distributors for Pakistan Tobacco Company. We have been distributors for Unilever, ICI, and Hayat Kimia, Pakistan. It's a 120-year-old company now. We are in our 4th generation, and this is an initiative which we took of establishing a learning center in our head office. The objective is to hold such seminars, talks of leading people like my friend Ijaz Nisar. This is the first official public training that we are holding. So please excuse us for any faults or loopholes that we might have left, but we tried our best to come up with the best possible option. Coming to today's topic and the speaker, we have Mr. Ijaz Nisar with us. He needs no introduction. He has been one of the leading and the most sought motivational speaker, trainer in Pakistan and abroad. I have been associated with Ijaz since long, much before when he embarked upon this journey and started the management house. I still remember we used to discuss various options for management house while sitting in his old office in Siddiq Center. And time flies. It's like a dream come true. Ijaz started from scratch and now has built a full-fledged management house where they are providing training seminars to leading organizations like yours. So I would not like to come in between Ijaz and yourself anymore. Today's topic is excellence at workplace. And please give Ijaz a big hand. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। अहमद हसनैन साहब, ये कसर नफ्सी से काम किया आपने। एक जो राउंड ऑफ अप्लाज है, पता है आज ये आफ्टरनून है, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप थके भी हुए हैं, वर्क प्लेसेस पे हैं, तो इधर आ रहे हैं। एक बिग राउंड ऑफ अप्लाज फॉर अहमद हसनैन साहब। Thank you very much, Ahmed bhai. You believed in me, you believed in the dream of learning and development, and you can believe in the amount of leadership displayed on the walls of each wall of Allied Marketing. आप देख सकते हैं, आपको एक एक दीवार पढ़ा रही है, एक एक जुमला, एक एक लाइन, it's really full of wisdom, full of impulse of wisdom है। ये आपको दीवारों पे पूरी Allied Marketing या बिल्डिंग का विजिट करें तो आपको मजा चलेगा। तो सर, थैंक यू वेरी मच। अगेन अल्लाह के पाक नाम से हम इस छोटे से सेशन का आगाज करते हैं। जैसे कि सर ने बोला, आज सर मुझे सुनाई नहीं दिया, कोई बोलेगा आज का थीम क्या है, टॉपिक क्या है? अचीविंग एक्सीलेंस। ताजा मुझे आपकी बात में आपको हाँ जी, किसका क्या थी थीम? अचीविंग एक्सीलेंस। कैच करेंगे। ये वॉइस नहीं है सर, ये मैं सॉरी डायरी में अगर आप वॉइस थे तो हम सबको वॉइस। हाँ जी, आज का थीम क्या है जी? अचीविंग एक्सीलेंस। सर ये आपके लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काफी मेरे पास है, शॉप में है। ये चॉकलेट्स है बेसिकली। असल में पाकिस्तानी को प्रॉब्लम है कि वी थिंक वी नो एवरीथिंग। हमारा सबसे बड़ा डायलेमा है कि वी आर मिस्टर नो इन पाकिस्तान। और मिस्टर नो एवरीबॉडी इन पाकिस्तान में हर बंदे को सब कुछ पता है, और बल्कि हर बंदा कहता है मुझे पिछली गल का पता है। हर बंदे को पिछली गल का पता है।
और मुशर्रफ क्यों गया सबको पता है, नवाज शरीफ क्यों गया, मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ को नहीं पता, पाकिस्तान को पता है। इसी तरह इमरान खान की बारी आने वाली है, सबको पता है, ठीक है जी। और एक दूसरा मैं एक्सक्लूड करूंगा, एक सर ने बोला कि पाकिस्तान में ना कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो हिट जो लोगों ने डाली है वो मोटिवेशनल स्पीकर से डाली है, क्योंकि इतने मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। तो मैंने कहा यार ये ना अब हमें मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा हमें को रियल रोल मॉडल चाहिए जो हमें वॉक द टॉक या लीड बाय एग्जांपल से करें। और अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में मैं बड़ा उनको इंस्पायर करता हूँ, अल्लाह ना करे उनको डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं होता, लेकिन वापसी का किराया आपसे मांगते हैं। तो मैंने कहा यार बंदा मोटिवेशनल स्पीकर वो होना चाहिए जो खुद उस रास्ते से गुजर चुका हो और जिसके पास अपना एक सक्सेस मॉडल हो और इसने कामयाबी हासिल। उसमें से कई चेहरे आज मुझे माशाल्लाह उस्मान बैठे नजर आ रहे हैं और अहमद साहब इस भी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी। पहले मुझे अपने आवाज आ रही है पीछे? ओके, वो रह गए कि पहला प्रोग्राम है पब्लिक को, इसलिए थोड़ा सा कोई ग्रुप को रह जाए तो उसकी माफी दे दीजिएगा। स्पीकर के मैं हमने कहा चलो कोई नहीं। तो कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही, कैन यू हियर मी? थैंक यू। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑडियंस। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। चलिए एक आध लेकर ये भी उछाल लेना ये आपके लिए, ये नहीं सर करो मेरे आपने मुझे पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट किया। शुक्र है। आज के दौर में कोई हंसता है ना, मुश्ताक यूसुफी कहते हैं, बहुत बड़े हमारे राइटर थे, अभी बहुत हुए पिछले साल। वो कहते हैं कि दो तरह के लोग आज के दौर में कहते हैं मुस्कुराते हैं। वो होता है जिसको जो पागल होता है वो मुस्कुराता है और जिस पर अल्लाह की तौफीक है, वरना कोई नहीं मुस्कुराते। और कहते हैं गधे में और इंसान में जो फर्क है वो मुस्कुराने का है। कहता है जी कि गधा अगर मुस्कुराने लग जाए वो इंसान समझे बन गया, और अगर इंसान ना मुस्कुराए तो समझे वो गधा। तो मुस्कुराहट जो है ना आजकल कोविड की वजह से, तो मैं इस बात पे सबसे पहले तो एक खुदा की जात का शुक्र अदा करें। कल रात को इंडिया में 94 केस रजिस्टर हुए, 94,000। तो और पाकिस्तान में 350। कोई कंपैरिजन बनता है? पॉपुलेशन के हवाले से भी देख रहे को कंपैरिजन बनता है। तो मुझसे पूछते हैं ये क्या वजह? मैं कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी बन हमारे पल्ले। जे मैं देखा अपने बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले, ते बल्ले बल्ले ते बल्ले, ये उसकी करम है। वरना एक हवादत से चले 95-94 हज़ार केस एक दिन में रिपोर्ट होना, सर ये कोई आम बात नहीं है। तो अल्लाह का खास करम है कि आज हम कुछ लोगों ने मास्क पहने हैं, वरना आज से जस्ट 1 महीना 2 महीने पहले चले जाएं तो सोच भी नहीं सकता था आज हम बैठे हो। तो आफ्टर 6 months वी स्टार्टेड ये ओपन एनरोलमेंट सेशन, वरना तो हम खुद नहीं कर रहे थे कि यार लोगों की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा 5 मिनट का एक छोटा सा एक प्रीएम्बल था। कमिंग टू द टॉपिक क्योंकि इतना बड़ा है और खासकर कोविड-19 की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, बहुत ज्यादा बिजनेसेस में हिट पड़ी है। कुछ इंडस्ट्रीज जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है और करती रहेंगी 1 साल तक एटलीस्ट, खासकर जिसमें ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, काफी ज्यादा इनको अभी टाइम लगेगा। और कुछ ने बहुत पैसे भी कमाए हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हेल्थ के रिलेटेड दे रियली मेड अ गुड मनी आउट ऑफ दिस कोरोना। और कुछ ने इसमें वाकई अपना अनएथिकल तरीके से भी पैसे कमाए। 500 रुपए की चीज 5,000 तक चली गई और एक 10 से 20,000 का जो इंजेक्शन था वो 5-5 लाख पे बिक रहा है। और वो अनबिलीवेबल। वो एक ऑक्सीजन का जो होता है छोटा सा मेजरमेंट का वो जो गैजेट होता है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, बल्कि नायाब हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने पेंट करके पुराने जमाने के सारे निकाल दिए। तो कुछ ऐसे अनएथिकल भी बिजनेसेस हुए, अल्लाह ताला बचाए ऐसे मुनाफे से, ऐसी चीजों से। कोविड ने चीज तो हमें सिखा दी इस कोविड की। अगर मैं की लर्निंग शेयर करूँ, हमने क्योंकि 5 महीने में हमने कोई 100 से ज्यादा सेशंस किए ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू सीईओ क्लब और मैनेजमेंट हाउस में। तो हमने एक चीज देखी कि लाइफ इज वेरी, बहुत जिंदगी जो गुजारने के लिए जो चीजें चाहिए वो बहुत जिंदगी सस्ती है, इज वेरी इनएक्सपेंसिव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफस्टाइल इज वेरी एक्सपेंसिव। ये सबसे ज्यादा, और ये बड़ा लोगों के पैराडाइम्स शिफ्ट हुए। कुछ लोगों को अकल आ गई, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं आई, कुछ हेल्थ ज्यादा खराब हो गए। तो कोविड के लेकिन ब्लेसिंग्स भी बहुत चैलेंजेस इसके अंदर छुपे हुए थे। ओके जी, कमिंग टू द टॉपिक। आज के वाले से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जरा स्किप कर रहा हूँ, वो हम टी ब्रेक पे ले लेंगे आपसे, ठीक है? इसलिए कि हम टॉपिक को जरा फोकस कर लेते हैं, उसके पूरा इन और आउट को देख लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों से, अगेन ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है जी।
अच्छा ये जब सब बंदे चॉकलेट सर इकट्ठे करते जाएंगे ना सर, एक्सक्यूज मी सर, ये आपने संभाल के रखनी, खानी नहीं है सर। रैपर संभाल के रखनी, रैपर मैंने जेब में। हाँ बस ठीक है, वो रखिए। जिसके पास ज्यादा रैपर्स या चॉकलेट्स निकलेगी उसको जाते वक्त एक मैं बेहतरीन गिफ्ट दूंगा उसको। हमारी जो पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट जो किताब है वो है 100 CEOs ऑफ पाकिस्तान। ये किताब आज मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट विन करके लेके जाए। ठीक है जी, 1 घंटा आपके पास है, 1.5 घंटा, हम 5 बजे तक इसको रैप करेंगे। टाइम क्या हो गया आपकी बच्चों पेश? हाँ, हमारे पे पूरा 1 घंटा है। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। ये किताब है जी, ये मार्केट में आप लिबर्टी से लेंगे तो 3000 ये मिलेगी। ठीक है, ये पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं कंपेंडियम कलेक्शन ऑफ ये सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान की 100 CEOs की। तो हर बंदे में से आपको मैं चाहता हूँ कि एक किताब यहाँ से आज विन करके जाए और उसको मिलेगी जिसके पास चॉकलेट्स ज्यादा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट ज्यादा। माय फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, व्हाट इज एक्सीलेंस? रेज योर हैंड। 2-3 बंदे, अरे डरना नहीं, जो भी उर्दू में बात करें। अच्छा, मैंने लैंग्वेज पर नहीं रखा, कोई मैं अंग्रेजी के चक्कर में पोडियम के पीछे नहीं खड़ा हो रहा कि भाई जरा मैं कोई अपनी स्लाइडें शो स्लाइडें शायद मैं वैसे ही स्किप ही कर दूं। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। सर ये राइट ला दें, अच्छा ये वाली बंद कर लीजिए, फ्रंट वाली सर, फ्रंट वाली बंद कर लीजिए, ये पीछे वाली सारी काम कर। बेटा आजे बच्चों, आप ही आजे, शिफा आजे, ये सारी नहीं, ये जला दिया आपने, ये लाइट जला दे सर, ये वाली एक बंद कर दो बस। फरूक आप देख लो, तो बस अगली वाली ओके जी। व्हाट इज एक्सीलेंस? पहले उन्होंने हाथ किया जी। Excellence, ये भी चला achieving something like 100%, 100 out of 100. Okay, excellence is achieving 100%, 100%. Sir, अपना नाम बताते थे जरा ताकि। सुलेमान. Basically refers to a yardstick of a measure to which success will be gauged against. If you're like 80%, 90%, 100%, whatever yardstick that you set for yourself, that would refer to excellence. और क्या करते हैं जो आपने यहाँ स्टैंडर्ड डिफाइन किया उसको आपने क्या किया? उस तक पहुंचने के लिए, ओके, if you reach to that bar, that is excellence for you. आपने एक पॉइंट किया कि मैंने 80 तक जाना है, आपने 80 नंबर ले लिए, 90 ले लिए, ठीक है। Excellence would obviously vary from person to person. ठीक हो गया सर, आपकी जाए। हाँ जी, और इधर से सर, मैक्सिमम आउटपुट पे मिनिमम रिसोर्सेज है। मिनिमम रिसोर्सेज का ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने मैट्रिक में पढ़ी थी एफएस में कि जी आप मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द, ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। एक्सीलेंस की हाईली स्किल्ड, महारत। चलिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। मैंने 2 पूछ ली हर बंदे। जी सर, आप अगर आपकी बात दूसरा मान लेते, ये तो आप घर भी मियां बीवी की बात कर रहे हैं। बीवी में तो हो ही नहीं सकती, बीवी में तो हो ही नहीं सकती। वाह, कहते शादी से पहले आप क्या करते थे? कहते जो मर्जी होती थी वही करते थे। नहीं सही कह रहे हैं। कहते अच्छा हस्बैंड जो होता है ना, विद थोड़ा सा मुझे लाइटर मोड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस हो गया। कहते अच्छा हस्बैंड स्प्लिट की तरह होता है, अब कोई याद नहीं करता स्प्लिट की तरह। तो वो कैसे? कहता है बड़ा गर्म होता है, घर में बड़ा ठंडा होता है और चलता भी रिमोट से ठीक है जी। अच्छा जी, और अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, क्योंकि ये पूरा जो थीम आज आप इस दरवाजे से जाएंगे ना और ढेर सारी आपके साथ बड़ी बातें होंगी, लेकिन एक चीज आप क्लियर करके जाएंगे, व्हाट इज एक्सीलेंस। उसको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने दफ्तर में आपने भी अप्लाई करना हो। मैं आपको एक सेकंड लफ्ज बोलने लगा जो कि एक्सीलेंस को डिफाइन करेगा। ओके, वो है अगर किसी को आता हो तो बोलेगा नहीं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, आपने सिर्फ अपना हाथ खड़ा करना है, यानी कि रेज करना है, डिफाइन नहीं करना। व्हाट इज 212, जो कि बेसिकली 212 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने उनके एक्सीलेंस के जरिए आपको समझाना है। अगर आपको समझ आ गया तो वाओ बेटर है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो बिग वाओ है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा पाकिस्तानी को एक ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी में अल्लाह ने टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी मीडियोकर। हर काम हम दिल से नहीं करते। सर जरा जिसको आता है, आपको आता है और किसी को रेज योर हैंड ताकि मैं जरा डिफाइन कर लो। 212 212 ओके। 212 for me is sum of पीपल में नहीं 212 क्या चीज है ये पूछ रहा हूँ। ये साइंस का ताल्लुक है आप, ये मैथमेटिक्स है सर। ये जैसे केमिस्ट्री का H2O पानी का फार्मूला है ना, ये भी फार्मूला है एक्सीलेंस का।
जैसे H2 होता है ना, मैं कहूँगा H2O क्या मतलब है? हाइड्रोजन के 2 और 1 सिंगल ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। ये बेसिक 6th क्लास की कहते हैं ना जी, कि ये छठी जमात का क्वेश्चन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये 212 में रोक रहा हूँ, आपको पता कि हमारी तो ये बताएगा कि हमारी जिसमें स्टार्स है सारे, हमारे जो प्लैनेट्स हैं सर, इस सारे सिस्टम का नाम क्या है? नहीं, गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। सर आपको हो गया मिल्की वे। अच्छा, मिल्की वे के साथ वाली सारे छाए जैसे घमंडी हैं, उनका नाम क्या है? कर सकते हैं? किसने बताया? नहीं तुम नहीं बता सकते। ये देखो, ये ठीक है जी। नहीं, मिल्की वे के साथ 25 बिलियन ईयर्स के लाइट ईयर के फासले पे हमारी सेकंड गैलेक्सी है जी। उस गैलेक्सी का नाम आपने क्या बताया? एंड्रोमेडा। वेरी गुड, एक्चुअली माशाल्लाह, जबरदस्त, इकट्ठी कर रहे हैं, जबरदस्त, वेरी गुड। आप भी जवाब दें प्लीज, आपसे पीछे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, 212 क्या है जी? आपने बता दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये साइंस है, मैथ है, और ये छठी जमात है, छठी जमात में पढ़ा था आपने, बस एक ही बात है, ये 212 और मैं कोई नहीं बात। अच्छा वैसे ना आपने ना एक चेक करना, नाजिया सबका डाटा देके इनकी कंपनी में लेटर भेजेंगे हम, जब आपने से मैट्रिक कितने पास किया हुआ है? वो लोग कोई आपको पता है डिग्री होगी, असली हो नकली हो, और लोग समझे एमबीए कर लेते हैं लेकिन मैटर नहीं होता। सर इस आंसर पे हैरान होता हूं, मैटर सीधा जंप करते हैं लोग। इस आंसर पे चॉकलेट मिलेगी? हाँ मिलेगी, हाँ मिलेगी। 212 किया मैं नहीं मैट्रिक वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ, किया मैं तो ये तो सारे बगैर मैट्रिक। और ये सवाल का जवाब है ना, ये सातवीं जमात का वो प्रोग्राम लगता था ना, क्या आप में से कोई सातवीं जमात से बेहतर है? आप 5वीं पास हैं? ये बड़ा अमेरिकन प्रोग्राम है, बाद में शाहरुख ने भी किया था ये प्रोग्राम इंडिया में। क्या आर यू बेटर देन 6th ग्रेड? तो मैं यही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि आप चलो 6th ग्रेड को मैट्रिक कर लेते, क्या आप मैट्रिक पास हैं? ये मैट्रिक से बेहतर है? तो आप बताइए कि 212 ये 7वीं जमात का क्वेश्चन है भाई। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एमएससी लेवल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 6th लेवल। हाँ जी, आप बताइए जी। फॉरेनहाइट, इनके लिए क्लैप करें जी। पकड़ाएं यार इनको, पीछे यार, हारे पीछे बैक हो यार। आप पीछे सर कैच करते जाइए आप। ये सर क्या है? 212 क्या है? फॉरेनहाइट है भाई। 212 जो है जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बॉयल करता है जी, और अगर इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए पानी को, तो 212 पे 212 पे पानी जो होता है वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्टीम। स्टीम जो होती है, इट्स अ मूवर। आपके जो पूरे जो इंडस्ट्रियल एरिया में आप बैठे हैं, आप सबसे पूछ रहे बॉयलर्स लगे होंगे सर, ऐसे ही है, और सारे 212 पे स्टीम बनाते हैं। 213 में नहीं होता, 211 में नहीं होता, am I right? तो 212 पे स्टीम जो होती है वो आती है, और स्टीम क्या करती है? चीजों को मूव करती है, शेक करती है। और आज का सेशन ये है, इस 212 के नाम है कि आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये 212 रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया, वक्त, हालात, तजर्बे, सो कॉल्ड डिग्रियां, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम हमें 210, 211 से आगे नहीं जाने देते। हमारा जो जिन होता है अंदर वो कम रहता है। हमारे साइंस के टीचर ने बताया था कि एक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, उसको काइनेटिक एनर्जी में कैसे ट्रांसफर किया जाए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, साइंस का बेसिक्स है, वही छठी जमात का। तो काइनेटिक जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो छुपी हुई मख्फी एनर्जी होती है, नजर नहीं आती। काइनेटिक से हम मशीन चलाते हैं जो नजर आती है, ठीक हो गया जी। तो हमारे अंदर जो छुपी हुई, जो खुदा ने जो ह्यूमन परफॉर्मेंस रखी है, जो एक्सीलेंस है, इसको कहते हैं पीक परफॉर्मेंस। वो कैसे आती है, ये है आज का सेशन सच 212 के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग और मशीनों में कुछ फर्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पुराना मानिए हम सारे मशीनें बन चुके हैं, जान नहीं रहे। हालांकि ह्यूमंस आर मोर सुपीरियर देन मशीन्स, क्योंकि मशीन भी इन्होंने बनाई। आप ये बात समझ गए ना? तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप कभी हाथ रखें, सारे हाथ रखें तरह, आप कभी गौर करें। अब आपको यहाँ पहले कभी रखते थे ना हाथ इधर अपनी चेस्ट पे, छाती पे, तो हमें धक धक की आवाज आती, आज का टक टक की आवाज। इंसान कहीं हो गया है, वी आर डी ह्यूमन लेवल पे चले। अगर आप सुपीरियर हैं उस सूरत में, तो 212 को अचीव कर सकते हैं। अब अगला जो सेशन है, अगला पूरा 1 घंटा आपके साथ ये
इसी तरह क्वेश्चन आंसर में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू। ये मैं सवाल के बोर्ड रखा है, इस पे मैं 3-4 क्वेश्चन आपके लिखूंगा। वो कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, एक को कहते हैं पीडागॉजिकल लर्निंग प्रिंसिपल्स, एक को कहते हैं एंड्रागॉजिकल लर्निंग प्रिंसिपल्स। जब छठी जमात, पहली जमात, दूसरी जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं ना कोई टीचर, तो होता है पीडागॉजिकल। पीड कहते हैं किड्स को, क्या कहते हैं जी? किड्स। जो किड्स की जो साइंस ऑफ लर्निंग है ना जी, आर्ट एंड साइंस ऑफ लर्निंग, इस कार्ड ठीक है पीडागॉजिकल। और एंड्रा किसे कहते हैं जी? अडल्ट्स। ये प्लीज इनके लिए आरएस को लीजिए, ठीक है जी। तो एंड्रा का मतलब होता है अडल्ट्स। एंड्रागोलॉजी क्या होती है? जब अडल्ट्स का क्या होता है, इट इज नॉट कि आपकी ब्लैंक स्लेट है और आपको कोई ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपके ऊपर चली जाएगी, बल्कि इट इज अ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इट इज कॉल्ड एंड्रागोलॉजिकल। जब वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है इट इज कॉल्ड पीडागॉजिकल। ठीक हो गया? तो पीडागॉजिकल में क्या, तो आज की क्लास मैंने इसको पीड की बजाय मैंने एंड्रा पे रखी है ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें, दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और माशाल्लाह 6 महीने में आपने कोविड में सिवाय पढ़ने लिखने के क्या किया? ऐसे ही नहीं कर सकते, बहुत पढ़ा हो, बल्कि उल्टा हो गया। जिस एज में हम आ गए ना, इसमें 2 प्रॉब्लम हुए नाजिया, 2 इश्यूज हुए। आजकल हर बंदे के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है कि इंफॉर्मेशन की वॉमिटिंग होने लगी। इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड विद इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतने, कोई इंस्टाग्राम से, कोई लिंक्डइन से, कोई उधर से, कोई उधर से, कोई टीवी से, कोई 150 चैनल से, और ठीक है जी, और आपको इतना कुछ आ गया है। सरदार जी से पूछना, सरदार जी आपकी नाजिया बेगम का नाम क्या है? सरदार जी से पूछा कि आपकी बीवी का नाम क्या है? सरदार जी ने कहा मेरी बीवी का नाम जो है ना वो गूगल है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, सर आपकी जगह रखिए। सरदार जी से पूछा, सरदार जी आपकी बीवी का नाम क्या है नकीब साहब? तो सरदार जी ने कहा गूगल। कहते वो कैसे? कहते एक सवाल पूछो 10 जवाब दे देंगे। सर इतना ज्यादा सर जी इंफॉर्मेशन है बंदे के पास। दूसरी अजाइब मसला है जी हमारा डिस इन्फॉर्मेशन का। क्या बोला जी? पहला क्या जी? ओवर इन्फॉर्मेशन, सैचुरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। पर सेकंड अलमिया क्या आज का? हमें फिल्टर करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन सी ठीक, वरना फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? दोनों का डिसअल्यूजनमेंट। तो वी लिव इन द एज ऑफ डिसअल्यूजनमेंट। बड़ा खुशनसीब इंसान है जिसके लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना इतना कंफ्यूजन। और ये डिसअल्यूजनमेंट क्या क्रिएट करता है? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली, ठीक, तो मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मैंने जिंदगी भर पढ़ा। तो सबसे बड़ा जो अलमिया है जो क्रिएट करता है, जो डिसअल्यूजनमेंट है, वो एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट है। और आज की सबसे फैशनेबल बीमारी का नाम है डिप्रेशन। ठीक हो गया जी? तो हर बंदा आजकल बड़ा शौक से कहता है ये क्या डिप्रेशन, डिप्रेशन। असल में डिप्रेशन बीमारी नहीं है प्लीज, ये एक सिम्टम है ऑफ द डिजीज। और डिजीज क्या है? डिसइल्यूजनमेंट। तो डिसइल्यूजनमेंट में उसको अपना आप को नहीं पता होता कि मैं कौन हूं, मैं कहने क्या कर। और पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से अब द लास्ट 2 डेकेड्स में पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों का सबसे बड़ा मसला ही बेमकसदियत। दे डोंट हैव एनी पर्पस ऑफ लाइफ। इसको कहता हूँ मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, आईबीए में मैंने 14 साल पढ़ाया, तो मैं कहता हूँ यार ये जो आईबीएस को, तो मैं कहता हूँ यार ये सारे बच्चे बड़े हाईली एनर्जी, हाईली टैलेंटेड, बट मिसगाइडेड मिसाइल्स, पता नहीं इनके पास, पता नहीं इनके पास कोई डायरेक्शन है। तो आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की नई नस्ल के हवाले से चाहिए वो डायरेक्शन। ओके जी, कमिंग टू द पॉइंट के 2-12 को हम बिस्मिल्लाह करके आगे चलते हैं कि हाउ टू अचीव इट। ठीक हो गया जी? शाबाश, जरा मेरे साथ आइएगा, मैं 5-10 मिनट्स दूंगा, एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन भी साथ चल दी जाएगी, और कोई क्वेश्चन होगा कोई आपके साथ, आपने मुझे कर देना बिफोर आई गो टू माय प्रेजेंटेशन। ठीक है? और ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा कि 8-10 मिनट से सिर्फ दिखाऊंगा स्लाइड्स, तो 2-2.5 स्लाइड दिखा के मकसद नहीं है आपको डिस्ट्रैक्शन में ले जाऊं। मुझे 3-4 बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं आपसे इस हवाले से, ताकि जब आप इधर जाएं तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे वो स्किप कर जाऊंगा। ठीक हो गया जी? तो फरूख साहब आप मार्कर करिएगा, इधर खड़े होकर लिखें। हाँ जी, क्वेश्चन करें इस टॉपिक के रिलेटेड के, या अपने साथ ही कोई क्वेश्चन करें जो रेलिवेंट हो इस टॉपिक के, इररेलेवेंट हो इस टॉपिक के, लेकिन आप कोशिश करें कि शायद कोई सवाल का जवाब क्लियर हो जाए आज। जो नहीं आता होगा आई विल एक्सेप्ट, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ईगो इशू। जी नाज़िया लिखें। जी नाज़िया बोले। So why it's important to have excellence? ओके तो जाओ।
या फारूक ये है ये सॉरी नहीं वही कल लाइट ला दे बाद में बात करते हैं। हाँ जी बताएं जी, क्वेश्चन बताएं जरा, 3 से 4 क्वेश्चन चाहिए मुझे बेसिक। आई रिक्वेस्ट कि जी एंड्रोलॉजिकल की क्लास है या पीडागोजिकल की क्लास है जी सर प्लीज। What is the concept of excellence in Islam? ओके गुड वेरी गुड, ये क्लियर हो गया, पकड़ते जाएंगे। देखिए सवाल करने में भी मिलेगी ये, पता है आपको, सही क्वेश्चन, मजे का, बहुत अच्छा सवाल किया, इनके लिए क्लैप करें जी माशाल्लाह। अच्छा क्लैप करें कैसो किया विद ड्यू रिस्पेक्ट आप दोस्तों से, ये थोड़ा सा मैं जान के ट्रिगर करूंगा, अगर मुझे लगा कि कोई क्लैप नहीं कर रहा तो पूरे हाल को दोबारा करनी पड़ेगी। सही बात है, क्योंकि कोई शुड बी ऑन द सेम पेज। असल में होता क्या, प्रॉब्लम यह है कि फिजिकली वी आर हियर, मेंटली समवेयर एल्स। हम होता क्या है कि माइंड बॉडी को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। माइंड ऐसे मंकी की तरह, पता है माइंड इज जस्ट लाइक मंकी, यू नो, आपने को 25 साल साइकोलॉजी पढ़ी, वो मंकी की तरह ऐसे थॉट्स ऐसे वेवरिंग होती है, पासिंग थॉट्स ऐसे मूव कर रही है, उसको टेम करना ही सबसे बड़ा स्किल है आज के ज़माने में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया कि एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है जी इन इस्लाम और कुरान को। मैं आपको तो बिल्कुल लास्ट में मैंने सेशन रखा हुआ था, आपने पूछ लिया, आई विल इनलाइटन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ टू सस्टेन एक्सीलेंस, सस्टेन कैसे? वाह वाह बड़ा जबरदस्त, एक्सीलेंस अचीव करना और उसको सस्टेन करना, सेकंड चैलेंज। सर जो कौन ने जुल्नोरैन साहब, ये आपके हो। अच्छा जी, और सबक देते हैं। नेक्स्ट एनी गर्ल्स प्लीज। सवाल आ रहा हूं आपके, आ रहा हूं, आप क्वेश्चन करते जाइए। जी बोलिए। I'm more focused about the efficiency. ताकि आपके जो जिस पर्पस के लिए आप आए, इतनी गर्मी में इतनी दूर में इंडस्ट्रियल एरिया आना आसान काम नहीं है। सच्ची बात है, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया स्पेशल आया है, जो उठ के आया दफ्तर से, उसके लिए साथ वाली बिल्डिंग से, तो उसके लिए उतना बड़ा नहीं, जो 10 किलोमीटर दूर गर्मी से भी आया उसके लिए बड़ा। आपने सवाल क्या पूछा है महविश? Efficiency. हाँ, Like efficiency to me would be different than you. ओके मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। ओके गुड, नहीं क्लियर, आपको पीरियड रखकर का रेफरेंस दूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु था, आपको एफिशिएंसी और उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसका मैं वो बंदर वाली मिसाल सुनी थी आपने, वो कहता था ना एक लोमड़ी का चैलेंज है ना, क्या कहते हैं कि वो शेर उसका बच्चा उठा के लेके आओ, तो वो जो बंदर के पास आया को मेरी हेल्प करो, तो बंदर कहता है ठहरो तुम, वो बंदर इस तरह से उस तरफ जाता है, उस तरह इधर जाता है, सारा दिन चक्कर लगाता रहता है, कहता क्या बना, कहता छोड़ो मेरे बच्चे का क्या बना, कहता छोड़ो तू देख साड़ी आनियां ते जाड़ियां। और यार दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, और अगर बच्चा वापस ले आए दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। क्लियर की बात, तो मैं ना मेटाफोरिकली समझाऊंगा, क्योंकि मैंने 25 साल मैनेजमेंट पढ़ाया लीडरशिप और मैनेजमेंट। ये मैं अव्वल साहब, इसको नाम नहीं आता, महीने में से जहाँ से आप गूगल में जहाँ डालिएगा आपको पता चल जाएगा। 25 साल मैंने नौकरी की थी सरकारी, और फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में काम किया, 150 कंपनियों में ट्रेनिंग कराया, और जैसे सर ने बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा लर्न्स हाउसिंग से भी एक स्टेप आगे हमने एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाया इधर एनआर रोड के ऊपर, आप आते होंगे, कई लोग आते हैं। हमारा तो मकसद ही है जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ स्टॉप स्टडीइंग स्टार्ट लर्निंग, हो गया एजुकेशन में जीपे से निकला है बाहर, और अब आप सब जिंदगी को सेल्फ एजुकेशन जो होती है ना, सबसे बड़ी एजुकेशन आज के समय। बड़ा अच्छा सवाल था जी। हाँ जी सर। So we've often heard that excellence is an attitude. क्या उधर भी रिपीट करें? Excellence is an attitude. जब लफ्ज सुनते जाएं, excellence is an attitude. So Okay. the question is following. Please. So to what degree is attitude the determinant in achieving this excellence? Oh beautiful. ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इधर नहीं थी। अच्छा, ये आपके पास। जबरदस्त, बड़ा अच्छा किया जी कि क्वेश्चन समझ आ गया अपना। At what degree के attitude, ठीक है, will go to play a role in determining the excellence. How to measure excellence effectively? अच्छा जबरदस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सीलेंस को मेजर कैसे किया जाता है। हरीश आर यू हियर? Well, I have to be. क्या हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई? No, it's just my activity. You challenge me, it's okay. Sorry about that. नो इशू। आपका सवाल था कि हाउ टू मेजर एक्सीलेंस, ये मैं आपको एक मैथमेटिकली फार्मूला दूंगा, ठीक है, ये आपके बीच जी। मैं excellence by having fair means. How can we have excellence by having fair means? Because in Pakistan there are a lot of things happening by unfair means. So excellence is there, but with unfair means. So बड़ी that's अच्छा the question. आपका नाम? Bushra. बुशरा ने सवाल पूछा आपने कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि एक्सीलेंस समटाइम हमारे जो होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना कि पिछले दरवाजे से Exactly. हासिल हो जाती है, लोग एक्सीलेंस रिपोर्ट ले लेते हैं। अब होते हैसियत मिलती है सरकारी महकमों में, अगर कोई काम किया हो किसी ने, बड़ी एक्सीलेंट लिखा होता है, एक्सीलेंट,
एक्सेलेंस आती है ना आपकी एनुअल अप्रेजल्स में भी ऐसे हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग तो जिसका ज्यादा कोई जो जिसका बॉस के साथ बना के रखी हो तो उसके साथ, और जो बेचारा सचमुच का बंदा होता है वो रगड़ा खा जाता है, उसकी प्रमोशन रह जाती है, इंसेंटिव रह जाता है। और एसीआर का मतलब क्या होता है भाई साहब? एसीआर बहुत बड़ा सरकार ये बताएंगे। एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें वो रिपोर्ट में आपकी सारी साल की जो परफॉर्मेंस जो होती है उसे कहते हैं एनुअल। नहीं सर, पुराना हो गया, नया है, तो ये क्या नहीं है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, नहीं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज। क्या बोला? एनुअल, थैंक यू एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज होता है। अगले का करियर तबाह कर दिया जाता है अप्रेजल के नाम पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो होते हैं ना, आपको पता है कि दे हैवक क्रिएट होता है लोगों के एम्प्लॉइज के साथ। खासकर सबसे बड़ी सरदर्द है किसी हेड डिपार्टमेंटल हेड की कि बड़ा जुडिशियसली किसी का अप्रेजल करे, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन है। पता है अप्रेजल जो होता है ये एसीआरस होती हैं या लोगों की करियर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है एनुअली या मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथली। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो बाइस कहते हैं, जिसके अंदर जो रौला पड़ता है, वो होता है हालो इफेक्ट का। क्या होता है हालो इफेक्ट? हालो इफेक्ट क्या होते हैं? हालो इफेक्ट, HALLO, हालो। ये आपको पता है सुबह दोपहर शाम ये हम गलती करते हैं, अपने किसी का रिश्ता लेके जाते हैं, कहते हैं बंदे चंगे नहीं आगे, फलां के जगह जाते हैं, जनाब ये इंटरव्यू में बैठे होते हैं, सारा दिन बैठ के अपने जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं, ये सो जजमेंटल। हालो इफेक्ट क्या होता है? We are 99% humans are victim of hollow effect. This is my research. सेल्फ परसेप्शन जो बना लो जी, किस चीज का होता है ये तो पूछ रहा हूँ। I think it has to do with your conscious biasness that you वो क्या है कॉन्शियस बायसनेस? ये तो करो 6 होती हैं, 6 पहले डिसऑर्डर कहते हैं इसको, परसेप्शन के डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, कि आपके देखा हुआ भी होता है, गलत हो जाता है यार। इंसान के अंदर ये बेसिक इनबिल्ट है, ये सिस्टम के अंदर। अगर आप उसके अंदर ट्रेन नहीं होते तो आप यू विल अगेन मेक द मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और अपने आप को कहेंगे मेरा तो कोई कसूर नहीं। मिसाल के तौर पे एक मैं हालो फैक्ट बताता हूँ। हालो फैक्ट क्योंकि सबसे खतरनाक, इसलिए मैं आपको लाइटर कर रहा हूँ, क्योंकि जब अप्रेजल की बात आएगी या परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की बात आएगी ना, उस वक्त अगर हालो फैक्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो यू विल मेक द मिस्टेक। आप कभी भी सही तरीके से मेजर नहीं कर सकेंगे सर। तो क्या है जी, हालो फैक्ट क्या कहते हैं कि किसी शख्स की, किसी पर्सनालिटी का एक ट्रेट लेकर उसको आप क्या करते हैं कि जस्टिफाई कर दें उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हालो इफेक्ट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप किसी बंदे को जाते हैं, देखते हैं कि यार आप नमाजें पढ़ते हैं, तो एक बंदा आ जाता है वो भी नमाज पढ़ता है मस्जिद में, वो कहते हैं यार बंदा बड़ा नमाजी है, और उसकी जो उसकी कारकर्दगी है वो सारी खूब खाते हैं। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपने उसको हाई रेटिंग कर दिया, दैट इज कॉल्ड यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस रादर दैन उसकी नमाजें। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ गया, रावियन बन गया गलती से, और अगर उसने इंटरव्यू किया या उसका कोई अप्रेजल हो रहा है, तो सामने वाला भी कहेगा जनाब आपने क्या किया हुआ? सर मैं रावियन, उसे पता कि ये भी रावियन है, एकदम उसके दिमाग में बायसनेस आ जाएगी, बाकी सारी परफॉर्मेंस साइड पे, ठीक है, ये तो मेरा बड़ा वेलकम निकला है यार। जी बोलिए। There's also something known as stereotyping. Stereotyping is also कि आप किसी benefit को या किसी negative aspect को लेके you apply to the entire personality. उसके सारे behaviors पे कर देते हैं apply. So how do you then differentiate? वही की चीज़ है, stereotype basically behaviors को कहते हैं, right? और hollow fact वो उसका एक disorder है. That is what I was saying. Yes, वो इसका stereotype behaviors होते हैं. So आप question का मैं जवाब is that stereotype. Yes, stereotyping is a behavior. हाँ, कि आप उस बंदे के एक aspect yes. को लेके totally या उसको कहते हैं hollow fact, के यानी कि बाकी आपने छोड़ दिया और एक ट्रेड को, एक बिहेवियर स्टीरियोटाइप को पकड़ लिया, और उसमें मैनी स्टीरियोटाइप बिहेवियर हो सकते हैं, 5-10 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। तो क्या होता है कि दीज आर द अप्रेजल के अंदर जो मेरा सवाल था। हाँ जी, और कैसा सवाल है? लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आऊंगा। जी मैम प्लीज, योर नेम? अरूज। जी अरूज। माइक्रो मैनेजमेंट जो एक्सीलेंस, इसका मतलब माइक्रो मैनेजमेंट क्या चीज है? क्या एक्सीलेंस का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट? ओके, इनको जवाब देते हैं। देखिए जी, क्या एक्सीलेंस का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट, ठीक है जी।
मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हाँ जी, मैं एनी लास्ट क्वेश्चन, शुड आई स्टार्ट? हाँ जी, एक क्वेश्चन और ही बस। एक्सीलेंस को शो ऑफ करने की जरूरत होती है या खुद ब खुद नजर आ जाता है? क्या क्या एक्सीलेंस को शो ऑफ बताने की जरूरत होती है कि ये बड़ा आपने प्यारा सा सवाल पूछा। देखिए जी, एक्सीलेंस को शो ऑफ करने की जरूरत होगी या खुद ब खुद ही? इसका तरीका है कि हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं कि एक हाथ से आप काम करें, एक हाथ से डोर बजाएं। क्या बोला? इसीलिए पूछा। क्या बोला? आपका नाम क्या है? आमिर। ये आपको मैं इसके साथ एक और गिफ्ट करूंगा। एक छोटी सी पोइम मैंने लिखी थी बड़े साल पहले की बात है, वो प्लीज दे दीजिए कि आप छोड़ दे आसिफ आमिर छोड़ दे आमिर ये धंधे तकरीबी, तू भी काम कोई तमीरी का, मेरे यार तू भी दौर में चमचागिरी का। जब चमचा तू बन जाएगा हर काम तेरा निकल जाएगा, ये करनी का फल है बाबा, तू करनी का फल पाएगा। जब चिकनी चुपड़ी बातों से तू साफ का दिल फैलाएगा, क्या उसको शर्म ना आएगी? क्या काम तेरे ना वो आएगा? क्या प्रमोशन तेरी ना करवाएगा? पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो ना एक्सीलेंस वो फैक्ट्री है, हाँ या ना? फैक्ट्री जो होती है ना जी, पाकिस्तान में हर बंदे के पास में मक्खन की फैक्ट्री है। दिल को लगी आप मेरा सच बोल के दिखाए ना जरा। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज ना, एक ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैंने आईबीए को 14 साल पढ़ाया जी, आईबीए में। तो मैं क्योंकि हजारों एमबीए पढ़ाए मैंने। 2000 जब नया एमबीए आया था, 2000 की बात है, फिर 2014 तक 14 साल पढ़ाया जी एमबीए। और मैं ना पढ़ाता भी था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, क्योंकि मैं बीइंग अ स्टूडेंट साइकोलॉजी तो मेरे वो था, मैं साथ अपना सिविल सर्विस में जॉब भी करता था। ठीक है, घोड़ा होता चली गया था मेरे पास साथ, शाम को मैं एमबीए को एग्जीक्यूटिव एमबीए को पढ़ाने जाता था, तो मेरा सब्जेक्ट लेते ही मैं ओबी थी। तो ओबी के अंदर मैंने सबसे क्यों कीमती चीज पढ़ी ना, अगर टाइम ना तो पॉजिटिव टाइम डज नॉट अलाउ मी कि मैं इन सब्जेक्ट्स को ओपन करूं, वो है पावर एंड पॉलिटिक्स कल्चर एट वर्कप्लेस। ये बड़ा सब्जेक्ट है सर, कभी इसको हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर एंड पॉलिटिक्स कल्चर को अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपकी सारी एक्सीलेंस खुद ही सर। एक पॉइंट तक आप अपनी मेहनत से अपने नंबर लेके जा सकते हैं, उसके बाद ऊपर जाने के लिए आपको उस पावर कल्चर को समझना, आपको अपने स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बॉस को समझना जरूरी है। स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन is the reflection of the style of management of CEO and the owner of the CEO of the company। ये बड़ा important रूल है। क्या जी? Do you think we should become part of this culture or we should try? नहीं, आपका इसका अंदर है कि समझना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को चेंज भी करना चाहते हैं, बगैर समझ के करेंगे तो रिवर्स होगी, और अगर आप समझ के करेंगे तो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते, और रिवर्स होके आपको फंस जाएंगे, आप उसको ट्रैप में आ जाएंगे। तो अच्छा काम करने वाला बंदा होता है वो जल्दी ट्रैप में आता है। ठीक हो गया जी, कमिंग टू द पॉइंट। अब मैं सवाल ले लिया, अब आपके साथ मैं एक एक करके फिर प्रेजेंटेशन करवाता हूं। सर पहला क्वेश्चन क्या है जी? What is the concept of excellence in Islam? मिस्टर उमर का सवाल है, छोटे छोटे मैं जवाब दे दूं, फिर मैं प्रेजेंटेशन को साथ करता रहूंगा। देखिए, जर्मनी जो जब जंग हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, सुनिएगा, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान के ऊपर जब बम फेंका गया, हाँ जी, इसने फेंका था जी यूएसए ने, तबाह हो गया सारा, 2 शहर नागासाकी, ठीक है, और उसका हिरोशिमा। उस दौरान क्या हुआ था, एक डॉक्टर डेमिंग, ठीक है, डेमिंग का नाम मैनेजमेंट की किताबों की पहले चैप्टर में बोला जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या था? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दुनिया की हार्वर्ड की किताब हो, एमबीए में की किताब होती है ना, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप पहला सेमेस्टर पढ़ते ये किताब है जहाँ, ठीक है, एंथनी रॉबिन्सन की लिखी हुई है। तो वो क्या होता है, वो कहता है कि ये डेमिंग ने आके उनको जापानियों को, क्योंकि वो प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, ठीक है जी, उसने आकर उन्होंने जापानियों को 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए, और पहले 2 प्रिंसिपल्स क्या थे वो सुनिए। 12 आप अपनी उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गूगल में लिखेंगे आपको आ जाएंगे। पहले 2 प्रिंसिपल्स बताता हूं आपको मैं। पहले प्रिंसिपल क्या था जी? पहला प्रिंसिपल था कि काइजान, उसमें जापानियों ने पूरा जापान इस प्रिंसिपल पे रीबिल्ड हुआ था। इट वाज टोटली डैश टू ग्राउंड। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी वॉट लग गई थी, और आज वही सेकंड थर्ड सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर क्या है? जापान। आज पहले सेकंड पे था, थर्ड
अब चाहे जर्मनी वो है, जब चाइना है, ठीक है, फर्स्ट यूएस है, तो उसने दो प्रिंसिपल पढ़ाए थे जी। पहला था जी काइज़न। काइज़न का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्या बोला जी? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि मुसलसल आपने तरक्की करनी है, मुसलसल इंप्रूवमेंट करनी है आपने प्रोसीजर्स में। एक्सीलेंस की ये करीब डेफिनेशन है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्या बोला जी? ठीक है। जब मैंने अहादीस की किताब पढ़ी, जब इस्लाम कुरान पाक पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी को पढ़ा, तो पता चला कि जो पूरे इस्लाम की दो बातों पे जिसकी बेसिक्स हैं जी, अगर आप मैनेजमेंट को कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पता चलेगा कि कहते हैं कि मुसलमान वो होता है जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर हो। क्या बोले जी? जिसका आज यानी कि वो तबाह हुआ है, जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। फिर हो गया जी। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कि जिसका आज अगर कल से बेहतर नहीं है, यानी कि जिसकी आज का आपने जो अचीवमेंट्स कर ली और अगले दिन आपने अपनी अचीवमेंट को बीट किया, क्योंकि आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, आपका मुकाबला आपकी अपनी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स के साथ है। दैट उसको आगे लेके जाना, उसको लिमिट्स को पुश करना, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंस इन इस्लाम। इन इस्लाम बता दो, मैं हदीस कोट किया है, बड़ी मुस्तनद हदीस है। और सेकंड जब मैंने प्रिंसिपल पढ़ा डेमिंग का, जो जापानियों को उसने मैनेजमेंट की किताब में पढ़ाया, वो क्या था कि जनाब जी कि मेक द मिस्टेक्स बट ऑलवेज न्यू वन, कि गलती करना सीखो, जब तक गलती नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या बोला, नई गलती करें। और पता है पाकिस्तान में 73 साल से वही पुरानी गलतियां होती है, इसलिए हम कभी आगे तरक्की नहीं करते। हमारा मॉडल है जी एक स्टेप आगे दो कदम पीछे। पाकिस्तानियों का जी मॉडल क्या है जी, एक स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैकवर्ड। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि गलती करें लेकिन नई गलती करें। कहते हैं कि फूल की डेफिनेशन क्या होती है कि फूल बिकम्स वाइज इफ ही मेक्स द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इफ ही लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ही बिकम वाइज। वाइज बंदा वो होता है जो एक गलती को दोबारा नहीं करता। मैंने 800 से जो उसके इंटरव्यूज किए, पाकिस्तान का कोई ऐसा बिलियनियर नहीं है। अब ग्लोबल लेवल पे जैक मा नाम ले ले, बिल गेट ले ले, आई मैं पर्सनली यार डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पिछले लास्ट 3 साल से जा रहा हूँ। मैं दुनिया के हर बड़े लीडर से मिल चुका हूँ और मैंने उनसे सीखा है। क्या सीखा है जनाब? कि जनाब जी के हर बंदा बड़ा गलतियां करता है और अपनी गलती से वो सीख के बड़े होते हैं, तो मार्केट पेट से नहीं आता। सक्सेस की जो डेफिनेशन कोई 800 में नहीं लिखी होंगी मुख्तलिफ सीईओज की और चेयरमैनों की। अब 800 को निचोड़े ना नाजिया तो क्या बनती है पता है डेफिनेशन? अगर 800 सक्सेस डेफिनेशनों को मैंने स्टडी किया है, वो बनती है कि सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ गुड जजमेंट एंड गुड जजमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज अ रिजल्ट ऑफ बैड जजमेंट। क्या बोला? रिपीट, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ, शादी ब्याह का मामला हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, किसी चीज का हो। नाजिया जी क्या जी? सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ एंड गुड जजमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज अ रिजल्ट ऑफ। अगर आप बैड जजमेंट नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तजुर्बा नहीं होगा, तजुर्बे से रिफाइनमेंट नहीं होगी, आपकी जजमेंट में फिनिशिंग नहीं होगी। अब मैनेजमेंट उसमें कोई आके पूछता है ज्यादातर क्या सिखाया जाता है, मैं कहता हूं सब एक चीज सिखाई जाती है, वो क्या कि गोल्ड में गोल्ड प्लेटेड में फर्क है। बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिसको गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड में फर्क आ जाए। तो सर दूसरी हदीस पाक जब मैंने दोबारा ये सफा आगे किया तो पता चला कि मुसलमान एक सुराख से दूसरी तरफ नहीं एक सुराख से दूसरी तरफ। तो मैंने कहा यार टेमिंग ने ये 14 प्रिंसिपल 12 महीने का आपने पढ़ने हैं तो 12 हदीसें भी आपको मिलेगी, आयतें भी मिलेंगी कुरान पाक की। आप हैरान होंगे कि जो एक्सीलेंस है जो टेमिंग ने हमें पढ़ाया और जिसपे जापान और जर्मनी रीबिल्ड हुए, और वो जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको सेम अल्फाज के साथ अरबी के अंग्रेजी में कर लें, अंग्रेजी की अरबी कर लें, सेम मिलेंगे। और इसने बताया कि 70 साल पहले डेमिंग ने, और ये हमें 1400 साल पहले मिल गए थे। अनफॉर्चुनेटली हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, बने बनाए मिले की थी खीर पकी पकाई, उन्होंने फेंटी लगा के खाकर पैसे खर्च करके लेबोरेटरियों में रिसर्च करके तो ये डिस्कवर किए थे। ठीक हो गया? तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सीलेंस बता दिया, हाउ टू अचीव एक्सीलेंस। ठीक हो गया? सेकंड क्वेश्चन बोले सर, आई होप आई आंसर्ड सर इन अ लिमिटेड टाइम सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट next is
हाउ टू सस्टेन एक्सीलेंस। सर एक्सीलेंस का एक फार्मूला है, आगे आएगा, वो है काश। याद रखनी आपने। क्या बोला जी? काश के स्पेलिंग बता दो, KASH, काश। काश के मतलब होता है, फर्स्ट K का मतलब होता है नॉलेज। क्या बोला जी? A का मतलब होता है एटीट्यूड, S का मतलब होता है स्किल, H का मतलब होता है हैबिट्स। अगर ये आपके पॉजिटिव हो तो ये कैश है, नहीं तो ये काश है। क्या बोला? रिपीट करना। अगर आपने सस्टेन करना है, सवाल किसका था? सस्टेन वाला। आपने सस्टेन करना है तो सर जी इनको क्या करना है? आपने पॉजिटिव टाइम इसका थर्मोस्टेट फिट कर दे तो ये क्या है जी? कैश। आपके पास पॉजिटिव हैबिट्स, वो आपको मैं लिस्ट कराता हूँ कौन सी वाली हैबिट्स। आपके पास एटीट्यूड पॉजिटिव, ठीक है, पिछले लफ्ज एटीट्यूड और बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ। ओके, अगेन आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। हमारा रोज का ये काम है, ठीक है। ये कहाँ से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एटीट्यूडल क्लॉटिंग क्या होती है? जैसे हार्ट में क्लॉटिंग हो जाती है ना जी, किसी को जो सिख होते हैं वो सिख ही रहते हैं, चूड़ा चूड़ा ही रहता है, पता है, कभी ना कभी नहीं रहता है। दिमाग जिसका खराब है उसको, कभी हम किसी के नट ढीले करने होते हैं, किसी को टाइट करने होते हैं, ठीक है, किसी के ज्यादा कसे जाते हैं, तो हर बंदे के कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो अगर ये काश जो है जी, ये उसके लिए होता है जो इफ्स एंड बट यूज करता है। याद रखिएगा, मॉडर्न रूल पर बातें हैं जिंदगी में, जो नालायक लोग होते हैं ना जी, सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाते, वो कौन से लोग होते हैं? जो इफ्स एंड बट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। काश, अगर और मगर। आपको पता है नालायक लोगों की निशानी है ये, जब भी लफ्ज अगर और मगर बोले ना तो समझ लेंगे कि यार ही इज अ लूजर। इफ एंड बट, मौलाना रूम फरमाते हैं अपनी मसनवी में, पढ़ा करें, मौलाना रूम कहते हैं कि अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा होता है। क्या बोला जी? अगर मगर की शादी कर दी जाए तो क्या होता है जी? काश। रिग्रेट्स, रिग्रेट्स एंड रिग्रेट्स। और 50 एक ऐसी एज है सर, कई माशाल्लाह 50 क्रॉस कर गए, कई टच होने वाले हैं, ठीक है, कोई और 5-7 साल तक टच हो जाएंगे, तो 50 साल के ऊपर एक ऐसी शुरू हो जाती है जब सवाई 95% ह्यूमन से होते ना, दे लिव विद रिग्रेट्स। अगर ये कर लेता सही, मैं CSS कर लेता, मैं डॉक्टर बन जाती, ये बन जाती, मेरा शादी उधर हो जाती, इधर हो गई, मेरा नौकरी इधर की डिग्री उधर कर, गलत हो गया है। जिंदगी में इतना क्राइसिस होता है ना बात में, खासकर मिड करियर में, तो जो HR वाले लोगों को पता है 35 में तो मिड करियर क्राइसिस कैसे शुरू हो जाता है कि व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एक क्वेश्चन बड़ा तंग करता है, एंग्जायटी क्रिएट करता है। अगर लोगों को आज फ्री विल दे दी, चॉइस है, 90% लोग अपनी बीवी और अपनी नौकरियां छोड़ दें। पूरी चाकर के नाम हाजिया, आपको पता क्या बोला जी? बात तो सच है मगर बात है क्या करें, बात तो वो कैसे कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे, खूब फैल गई बात। आज का सेशन हम प्रवीण चाकर के नाम कर देते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी हमारी लेजेंडरी पोएट्स, ऐसे लोग अब थॉट लीडर्स कहाँ आते हैं? चलेंगे दुनिया से। मर्दमशुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मर्दमशनासी करोगे 22 भी नहीं मिलेंगे। क्या बोला जी? मर्दमशुमारी करोगे तो मर्दमशनासी करेंगे, इसे कहते हैं कहतु रिजाल, कहते रिजाल कहते हैं मर्द, मर्दों का कहत पढ़ते, सही बात। तो जी क्लियर हो गया पॉइंट? सस्टेनेबिलिटी सवाल हो गया जी। सस्टेन कैसे होते हैं? KASH, काश इसके नंबर ठीक हो जाए तो ये कैश है, अदरवाइज ये, अगर ये KSH ठीक तरतीब में आ जाए, 6 आपने पता बैक खुल जाता है, तो सक्सेस और एक्सीलेंस के नंबर है डिजिट्स चारों के। कौन सी हैबिट चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए, कौन सा स्किल्स चाहिए, और कौन सा आपके पास एटीट्यूड हो। और एटीट्यूड एक डिफरेंशियल फैक्टर है, वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये मैथमेटिक्स है ये, बाकी सारे प्लस होते हैं, सिर्फ एटीट्यूड जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। जरा याद रखिएगा ये बात, आपके जितने भी नंबर हो ना नॉलेज और स्किल के, वो माइनस हो जाते हैं अगर एटीट्यूड नेगेटिव है। बंदे के पास बड़ा नॉलेज है, बड़ा इल्म है, बड़ा उसके पास आप चाहे इल्म है, लेकिन अगर वो है बदतमीज, आपके पास नहीं बैठ सकता। याद रखिए, क्योंकि जिसका नॉलेज ज्यादा होता है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है। हुस्न या इल्म, दोनों के अंदर क्या होती है? एरोगेंस। किसी भी चीज एरोगेंस, तकब्बुर 4 चीजों का है बुनियादी तौर पे इंसान का।
एक आपकी जात पात का तकब्बुर, मैं सैयद, मैं सुन्नी, मैं ये, तो मैं वो। दौलत का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर, जो दीन का तकब्बुर, मैं बहुत बड़ा नमाजी, बहुत, बल्कि ये ज्यादा मुश्किल तकब्बुर है जी। क्या कह रहे जी? सबसे मुश्किल। ओके, ये ऐसा आपको पिक ऑफ करता, आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये 4 तकब्बुरात से अगर आदमी निकल आए ना तो जिंदगी बड़ी सुकून होती है। और पाकिस्तानियों का वैसे भी 2 ही प्रॉब्लम्स है, एक क्या जी, ईगो, तकब्बुर, इसको एरोगेंस कहते हैं, और दूसरा हसद। क्या बोला जी? पता है इस मुल्क में आधा मुल्क सिर्फ हसद से जल रहा है, पता है आपको? कसम से इतना हसद है कि हम किसी को दिल से दुआ भी नहीं देते, कहीं सचमुच में लागी ना जाए, सचमुच में कहीं लागी ना जाए। आप कभी किसी को दुआ देते नहीं देखेंगे पाकिस्तान, ऊपर ऊपर से दुआ देते। आप कभी हज कर क्या है ना, तो आपका रिश्तेदार हज ना किया हो या उम्रा ना किया हो, आपको मिठाई हो तो हंसी नहीं आएगी। और मैंने जॉय साहब ने पूछा, जॉय साहब आप 14वां उम्रा करके आए, खैर है? उम्रा तो एक बहुत नहीं सकती, हर तो है तुम उम्रे करें तो टूट जाते हो। और कहना बेवकूफ, उम्रा करन कौन जाता है? इतने अपने शरीके के सिर च सवाह पानी, अपने आप को दिखाना है भाई मेरे पास पैसे बड़े, हर कोई कौन जीते, अल्लाह के रास्ते कौन उम्रे करते हैं। और जितने भी ये खराते होती हैं सारी फोटो शूट होते हैं, ठहरो में ठहरो, अगर आप फोटो वाला कैमरा वाला आ जाए, ये शादी पे हो गए स्वाय तसन्ना बनावट के क्या होता है बदकिस्मती से। अल्लाह का हुक्म तो बड़ा सिंपल है, निकाह तो सबसे सिंपलेस्ट एक्टिविटी होती है लाइफ की, लेकिन हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि बस फंस गए। हो गया नेक्स्ट। अगर एक मैं अब ये सवाल, पहले सवाल ले लीजिए, ओदी बैगेज सस्टेन वाला हो गया। दूसरा सवाल क्या जी, हाउ टू मेजर एक्सीलेंस। मेजर एक्सीलेंस, देखिए एक्सीलेंस कैसे मेजर होती है? सिंपल, आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 100। क्या बोला जी? आप मिसाल के तौर पे आज का दिन है, आपने एक थिंग्स टू डू में लिखी 10 आइटम्स, आपने लिखे ऊपर 8 घंटे, और उसमें से आपने की 4, 8 को मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू जो परसेंटाइल आएगा वो आज की प्रोडक्टिविटी जनाब आपकी। और आपने नंबर देना है तो मैथमेटिक्स को समझते हैं। आपको पता है अगर अल्लाह ताला की जात अगर दुनिया में आए तो अल्लाह वुड भी, अल्लाह ताला की जो जात है पता है वो मैथमेटिशियन। अल्लाह क्या जी, ये कायनात सारी मैथमेटिक्स के असूलों में बनी हुई है, पता है आपको उस्मान साहब? अल्लाह इज ए मैथमेटिशियन। सारा जो तस्वीरें हैं, जो कायनात की सारी चीजें बनी है, डिस्टेंसेस देखें यूनिवर्स में सारी एक सुभान अल्लाह। जब आप जाते हैं उसकी जब उसको मेरा ख्याल है कि आपको एक ऐसी चीज मिलती है आप हैरान हो जाते हैं। तो सर मैंने आपको सिंपल मैथमेटिक्स बताई, अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि वो जो नंबर असाइन करने होते हैं उसके अंदर Q2 वाला फार्मूला लगाया जाता है। Q2 किसे कहते हैं? आपने कभी जिंदगी का लाइफ मैट्रिक्स स्टडी किया है? इस जिंदगी का मैट्रिक्स कहते हैं, इसको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये दुनिया की हर बड़ी किताब में दिया गया, 7 हैबिट्स में भी है, सब जगह पे। उसके अंदर ये मैट्रिक्स के अंदर Q1, Q2, Q4 जो सबसे कीमती चीज है एक्सीलेंस हासिल करने के लिए वो Q2 है। सेकंड क्वाड्रेंट वो क्या है? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट जो होता है ना जी, क्या बोला जी? क्या है तुम्हारा बोले? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्लीज प्लीज राइट उसी मतलब गलत ठीक ना। Q1 जो होता है ना जी वो होता है इंपॉर्टेंट अर्जेंट, और जिसमें अर्जेंट माइनस करते सिर्फ इंपॉर्टेंट हो वो Q2। ये आपको वैसे मैं गलती में भी दे देता आपको भी गौर किया, पता झूठ भी गलती से बोले ना, कॉन्फिडेंस से बोले लोग मान लेते पक्के झूठ पक्के पैर बोला करने से। अच्छा जी, क्या होगा जी? अर्जेंट नहीं है लेकिन इट इज कॉल्ड Q2। तो जिंदगी में जी वो जो Q2 की आइटम्स है ना उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय 100 वो आपकी रियल एक्सीलेंस निकलेगी। मैं इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वरना आपको पूरी एक्सरसाइजेस करवाता है आज, इसलिए मैंने स्किप कर रहा हूं ताकि वो आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस आज मैंने कहा था आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है एक्सीलेंस का। हम तो कहते हैं एक्सरसाइज कराते हैं और 70% आउटडोर होती है एक्सरसाइजेस, 30% क्लासरूम में होती है। मेरी सारी प्रोग्राम होती है नथिया गली में, मैं आ जाता हूँ लेके आ जाए यार, वहां जाके ये PSO, एंग्रो, नेस्ले, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं 100 आप समझ लें पाकिस्तान के, मैं सबकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। तो इसलिए उनके मैं सारे बड़े बड़े GMs को और हेड्स को CEOs में
उनको मैं एक्टिविटीज दे देता हूँ, केस स्टडीज, और फिर वो खूब मजे से कर रहे होते हैं। और वो कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी आती है ना लाइफ में विद एक्सरसाइजेस, वो भी जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल है, ये कंसेप्चुअल लर्निंग मॉडल हो रहा है इस वक्त हमारा। उसमें फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो वो जो आइडिया होता है ना जी, वो जिंदगी भर दिमाग के अंदर चिपक जाता है, लाशौर के अंदर, क्योंकि माहौल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि इंसान के बिहेवियर में, सर ये बता रहा हूँ आपने स्टीरियोटाइप की बात, हमारे जितने बिहेवियर्स होते हैं ना, बेसिकली क्या देखिएगा, सारे बिहेवियर्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द कॉन्शियस माइंड, आर कंट्रोल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। और लाशौर हमारी आदतों को, हैबिट्स को कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर डे 1 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 8 आवर्स, 7 आवर्स, आपके 8 घंटे, 3 आप 8 घंटे ले लें, 9 से 5 कर लें, 9 से 10 कर लें, मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटीज ऑफ ए कैटेगरी, कोई Q2 जिसे बोलते हैं, क्या बोला, वरना Q4 को रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी नहीं सही भाई, ठीक, और डिवाइडेड बाय 100। तो आपको डेली आपको आज की डेट डाल के उसको आपने जवाब रख लेना है, उसके आगे जाए या पीछे आप, क्योंकि जिंदगी कभी स्टैटिक नहीं होती, या आप ग्रो कर रहे हैं या आप डिक्लाइन कर रहे हैं, कहीं भी आप स्टैटिक नहीं थे। कोरोना में भी लॉकडाउन था, ब्रेकडाउन नहीं था, याद रखिएगा। तो लोगों को बार बार, मैं बड़ी सैकड़ों लोगों की काउंसलिंग कर रहा था ड्यूरिंग कोरोना, बड़े लोग इलाज क्या करें, डिप्रेशन बढ़ा, एंजाइटी बढ़ी, क्या करें, रोटी खाने को भी नहीं, दुकान भी बंद, कारोबार भी बंद, कहीं तो ले ऑफ हो गए लोग हजारों की तादाद। तो उनको कहते थे यार इट इज अ ब्रेकडाउन, इट इज नॉट अ लॉकडाउन, इट इज नॉट अ ब्रेकडाउन। कहते क्या मतलब, मैं लॉकडाउन में क्या लर्निंग हो सकती है, यस, क्या हवाएं चल रही हैं, यस, क्या फाख्ताएं उड़ रही हैं, क्या बटरफ्लाई चल तितलियां देखी हैं, क्या आपने फूल देखे हैं, क्या आप आपके पास जो सांस ले रहे हो, क्या आपके पास अच्छी किताबें घर में मौजूद हैं, क्या आप अपने बच्चे हैं आपके पास, क्या आपकी फैमिली आपके घर में है, साथ है, तो यार आपसे ज्यादा ब्लेसिंग है ही नहीं किसी के पास। व्हाई यू आर क्राइंग? याद रखिएगा, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जिंदगी में 3 चीजें हैं, सर्कमस्टेंसेस, हालात जो सब्जेक्ट एक बार से एक जैसे थे, ग्लोबली पेंडेमिक था, सेकंड क्या रिस्पॉन्सेस, और थर्ड क्या रिजल्ट्स। 3 चीजें याद रखिएगा, क्या बोला जी, सर्कमस्टेंसेस, रिस्पॉन्सेस और रिजल्ट्स। मैंने कहा सर्कमस्टेंसेस मोरलेस एक जैसे थे, लॉकडाउन था, बंद था, अप्रैल का महीना टोटल। अब रिस्पॉन्सेस 2 हैं, या प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। क्या मतलब होता है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या जी, या मेंटली स्ट्रांग है या स्ट्रांगली मेंटल है, क्या बोला, याद आया, या मेंटली स्ट्रांग या स्ट्रांगली, या एंडलेस होप या होपलेस एंड। आई रिपीट, क्या बोला जी, या एंडलेस या होपलेस, या विक्टिम है या विक्टर है, या ब्रेकडाउन का शिकार हो गए या ब्रेक थ्रू कर दिया आपने, या ब्रेक द रिकॉर्ड्स। ये डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। आप लाइफ इज 10%, व्हाट डू यू डू, सॉरी, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू, एंड 90% व्हाट डू यू डू व्हाट हैपेंस टू यू। आपके पास जिंदगी में जो 10% आपके इस घर में पैदा हुए, कोरोना के हालात में पैदा हुए, कोरोना के बाद पैदा हुए, कोरोना ने आपका सारा कुछ हशर कर दिया, ये 10% पैकेज। और 90% आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किया, पॉजिटिवली या फिर आपने उसको प्रॉब्लम समझा, या इम्पॉसिबल समझा, या फिर आई एम पॉसिबल समझा। क्या बोला जी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर आई एम पॉसिबल। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। पेंडेमिक इज आउटसाइड, असल पेंडेमिक आपका इनसाइड है, बिकॉज एंड लाइज इनसाइड नॉट आउटसाइड। रिपीट कर रहा हूं, होपलेस एंड या एंडलेस होप, मेंटली स्ट्रांग या स्ट्रांगली मेंटल, चॉइस इज योर्स। और मैं दुआ आपको देता हूं। ये सवाल हो गया जी, क्लियर हो गया जी? आगे चले जी, नेक्स्ट ये जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीलेंस एंड कंपनी विजन, मिशन एंड वैल्यूज? रिलेशनशिप, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या देखिएगा, जिंदगी का मकसद अगर क्लियर हो जाए तो एक्सीलेंस का जो जन्म होता है, जेनेसिस इसका क्या है, द जेनेसिस ऑफ एक्सीलेंस इज स्टार्ट फ्रॉम योर मिशन स्टेटमेंट। और अगेन पूरा ना मानिएगा, कड़वा सच है, रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं सबसे बड़ा कहूँ कि मैं कोई 100 से ज्यादा कंपनी में एक्टिविटी करा चुका हूँ विजनिंग के नाम से। विजनिंग 10 years 5 years डाउन द रोड, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कंपनी को, जात को, पर्सनालिटी को। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, PMS स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, HR वालों के लिए पाकिस्तान मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोविजनल मैनेजमेंट सिस्टम,
प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज, क्या जी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, हाँ क्या जी? PMS, हाँ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। मेरा सेशन रेट जीता है। लो जी, दे दो ये आपके लिए। जिंदगी का ये सारी सवाल आपके जब इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपनी स्टोरी सुनाने के बजाय इस तरह के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हमारे साथ आके जो सवाल होते हैं वो तंग करते हैं जी। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज जो होती है, जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है आपकी विजन स्टेटमेंट। इसका सवाल मैं आपके, अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तानी को पता क्या है? विजन नहीं है, टेलीविजन है। क्या बोला जी? हमारा प्रॉब्लम ही टेलीविजन है, जिसकी डिसइल्यूजनमेंट टेलीविजन ने बनाई है जी। जितना डिप्रेशन टेलीविजन ने क्रिएट किया, हिस्ट्री में किसी चीज ने नहीं किया। जितने मरीज ये बढ़ाए ना दिमागी, क्या कारण है? गवर्नमेंट लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम है मिशन स्टेटमेंट। और मिशन स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास पाकिस्तानी के पास एक ही मिशन है, वो है कमीशन। क्या बोले सर? बिजनेस होते कमीशन के ऊपर। सर सही है, सही करना। आपके पास सारे डिस्ट्रीब्यूटर आके क्या कहते हैं? कड़ा कमीशन क्यों? अब कहते हैं यार हमने पॉपुलर बने नहीं मिशन स्टेटमेंट बनाई, कहते अपने को रखो, मेरे 5% ज्यादा दे दिया, मेरे 5% सर। दिस इज, ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में ये फर्क, ये गुड टू ग्रेट में ये फर्क होता है। आपको पता है गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। इनको एक्सीडेंट के लिए क्या पर ये ग्रेड आई थी, तो इसलिए इनको भी कर दिया। और बता दूं मैं, ये ना बेसिकली सिंबल है मोटिवेशन का। ये चॉकलेट नहीं है भाई द वे, ठीक है? वैसे है चॉकलेट ही ना करते, लेकिन ये मोटिवेशन है। और चॉकलेट्स जो होती है ना अपनी अपनी जिंदगी के हर स्टेज में बदलती रहती है, ठीक है ना जी। किसी को एप्रिसिएशन भी होती है, उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक हो गया। कमिंग टू द पॉइंट सर जी, ये हमारा सेशन हो गया जी। ये कौन सा वाला था? विजन। तो याद रखिएगा कि विजन स्टेटमेंट के बाद आती है आपकी मिशन स्टेटमेंट। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पीएमएस के बारे में बात हो गई थी, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। आप में से चलो मैं इसका कितने किसके पास लिखी हुई है? इसका लिटमस टेस्ट है कि इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, रिटन, वेल प्लेस्ड, जस्ट लाइक ये जो बड़ी खूबसूरत सी आपको बड़े बड़े ऑथर्स, राइटर्स और ये गुरुज मैनेजमेंट के इनकी कोटेशंस नजर आ रही हैं, बिल गेट्स सबकी नजर आ रही होंगी। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके मिशन स्टेटमेंट आपने कोई लिखकर ऐसे फ्रेम में लगा कर रखी किसी ने अपने घर में, अपने ऑफिस में? एनीबॉडी? प्लेस्ड, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, सच का तो कुछ नहीं बोलना प्लीज। ओथ है ये हमारा, किसने लगा के रखी हुई है? ये मेरी सर इसी तरह की, मेरे देखिए जो मेरा मोबाइल है उसका टेस्ट दिखा दे, मैं उसको 2 दे देता हूँ, ठीक है? चलिए ये सर ये देखिए मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट या मिशन विजन स्टेटमेंट, ये मेरी डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरे घर में, मेरे वॉशरूम में लगी हुई है, मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है। मैं रोज सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर गुड, वो तो एक एनुअल होते हैं और अगले एक हफ्ते तक भूल जाते हैं लिखने के बाद। 99 लोगों का ये बिहेवियर है, ये बड़े कम लोग। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ट्विटर पे लगाइए, ओके। ये आपने लगाई भी लॉन्ग डिस्टेंस? क्या लगाई है रोजी? वैसे पढ़े यार, आप पढ़े, मुझे पढ़े यार, मेरा जरा क्लासेस के बारे में पढ़े। खड़े होकर बोले जी। अल्लाह अकबर, माय मिशन लॉन्ग डिस्टेंस रनर। लॉन्ग डिस्टेंस? लॉन्ग डिस्टेंस रनर। अच्छा आपने 3 2 होता है। वाह वाह, चलो यार एक अच्छा ये बता रहे मैं इसका ये टाइम नहीं, आज वरना आपको लिखना सिखाऊंगे कैसे लिखी जाती है। जी सर, अरे इसको हम आपको दे दिए। शेर मैंने लिख के लगाया। सर बोले शिकवा या जुल्मत सबसे तो पहली बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अच्छा मैं एक बात बता दूं, एक सवाल करता हूं, फिर आपको ये जवाब देता हूं। तो इसका कि मुसाफिर में रवाना करने में क्या फर्क है? मुसाफिर और रवाना करने में मंजिल का फर्क है, डेस्टिनेशन का फर्क है। और डेस्टिनेशन का दूसरा लफ्ज होता है विजन, कि वे यू वांट टू बी, और मिशन इज
बेसिकली इट इज अ माइलस्टोन, रोड मैप कि आप कैसे जाएंगे। तो जो विजन होता है, जो ख्वाब होता है या मंजिल होती है, मंजिल का फर्क है। और मतलब आज पता चला कि ये जो मुसाफिरों की नहीं वारागर्दों की क्लास है। लेकिन ये आप ट्रैप हो गए, पकड़े गए आप, ये वारागर्दों की क्लास है। अगर आपने मिशन स्टेटमेंट अगर 48 आवर्स में नहीं बनाई तो जिंदगी में बकाया जिंदगी में भी नहीं बना पाएंगे। दिस इज माय रिसर्च। राजा कितने घंटों में 48 आवर्स। अगर आपने नहीं बनाई और उसको इस तरह जैसे अहमद साहब ने तो खूबसूरत सी दिखाई हुई है, तो आप अपने घर में अपने लिए लगाएं, क्योंकि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नार्सिसिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको अपनी जात से प्यार होना चाहिए। गवर्नमेंट को सिखा दिया टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट फॉर अदर, नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर्स। जिंदगी में सबसे कीमती चीज सांस है, और कोविड ने ये सिखा दिया वही बचेगा जिसके पास दो चीजें हैं। पता है आपको, पूरे कोविड 8 महीनों में 6 महीनों में जो कोविड आया सबको सिखाया, आज भी सिखा रहा है क्या दो चीजें जिसके पास है वो तो उसको कोविड कुछ नहीं कहेगा। वो शील्ड है, उसकी फायरवॉल है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिसका ईमान स्ट्रांग है। क्या बोला जी? जिसका इम्यून सिस्टम और जिसका ईमान, दो चीजें जिसके पास हैं उसको कोविड कुछ नहीं कहेगा जनाब। ईमान और इम्यून की कहानी है ये सारी। आज का सर अगला सेशन में रखता हूं इसी पे इम्यून सिस्टम, क्योंकि लोगों ने सना मक्खी खा के सत्यानाश कर लिया। वो मैं खुदा के वास्ते यार बड़ी हो गई है। कितने जाएगा 200 रुपए किलो, 4000 रुपए किलो बिक रही थी। अच्छा जी, तो मैं अब आपको क्लियर होगी बात कि यार विजन जो होता है, अगर उसका जो पर्पस स्टेटमेंट, उसका जिंदगी का मकसद अगर क्लियर हो जाए। एक किताब पढ़ी है, किताब पढ़ी किसी ने, ये वाली किताब है मैन सर्च ऑफ मीनिंग बाय हेनरी विक्टर फ्रैंकल, दुनिया का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने ये किताब लिखी थी, पता आपको, पत्तों पे लिखी गई थी और 50 मिलियन से सर आगे ये सबसे बड़ी, ये जो दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है ये उसने लिखी थी सर। ये आपकी लेटा नहीं सर, देखिए ना, मैं याद रखिएगा अपना असगर, ये जिंदगी का असूल है। जो मोहब्बत होती है वो अनकंडीशनल होती है। क्या बोला जी? माँ का बच्चे का जो प्यार है ना जी, वो अनकंडीशनल है। उस्ताद का जो शागिर्द के साथ जो प्यार है जी, वो अनकंडीशनल है। खुदा का जो अपने इंसानों के साथ प्यार किया है वो अनकंडीशनल है सर। तो ये समझ आ गई बात। तो हमने शर्त के साथ लगानी कि कोई सवाल का जवाब देगा तो मिलेगी, आप क्लेम करें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और किसी को शाबाश भी मिल सकती है। तो जी हमारे पास कितना टाइम बच गया जी? अब हमने कोई सवाल होंगे जवाब मैंने सारे दे दिए। ओके, अब मेरे को 5 साल देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना जरूरी थी। क्लियर हो गया जी? विजन स्टेटमेंट जो होती है, द मोर हायर द विजन जो है, कहते हैं कि विजन विदाउट एक्शन इज डिसइल्यूजनमेंट। आई रिपीट, विजन विदाउट एक्शन इज डिसइल्यूजनमेंट, और एक्शन विदाउट विजन इज नथिंग बट एमलेस एक्टिविटी। और व्हेन विजन मीट विद एक्शन, जब ख्वाब, ठीक है, और जब अमल होता है तो फिर क्या होता है? तो फिर रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स होती है। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो आप रात को सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और ख्वाब जिन्होंने देखने होते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। ऐसे शख्स को जिंदों में कैसे शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं, जो सोचता भी नहीं। तो डायरेक्ट आपके पर्पस और आपके विजन स्टेटमेंट के साथ। और अगर 48 आवर्स में आपने अपने विजन स्टेटमेंट बना कर लिख कर, और उसका क्राइटेरिया बता देता हूँ, टाइम नहीं है वरना आपको लिखवाता, आपकी प्रैक्टिस करवाता और आपकी 1 लाइन आपकी जिंदगी बदल देती। और मैं आपको बताता ये जो उन्होंने अच्छा सा शेर लिखा, इन्होंने जी आई वांट टू बी रनर, ये बेसिकली गोल है। क्लियर कर दो, गोल्स में और विजन में फर्क है। विजन इज अ बिग पिक्चर ऑफ लाइफ। गोल्स बदलते रहते हैं रोज। आज आपने इस्लामाबाद जाना है, ये गोल है जी। आज आपने एमबीए करना है, ये गोल है। एमबीए के बाद अब तो मैंने एमफिल करना है, गोल चेंज हो गया। साल बाद पता चला मैंने पीएचडी करनी है, अब मैंने जनाब लंदन जाना है, गोल चेंज हो गया, हुआ है लंदन, नहीं अब कनाडा जाना है जी। तो गोल्स क्या होते हैं? रीडिफाइन होते रहते हैं, लेकिन विजन बार बार डिफाइन नहीं होता। ये आपके लिए एक कंपस का काम करता है। क्या बोला जी? मोरल कंपस कहते हैं विजन को। क्या कहते हैं जी? मोरल कंपस। कंपस क्या करती है? आपको
डायरेक्शन देती है। आप कहीं भटक जाते हैं और बुरा ना मानिएगा, बीइंग अ लीडर, नाजिया आज का सबसे सारे लीडर्स बैठे हैं माशाल्लाह मेरे सामने, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। क्या बोला जी? और नंबर 1 स्किल क्या है जो मैंने बताया, काश और कैश बन जाएगा। उसमें पहला स्किल जो आता है आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट, लर्निंग टू अनलर्न। क्या बोला? आपने अगर अनलर्न ना सीखा, आप कभी आगे नहीं ना, ठीक है। आईने 9 से डरना और दर से कहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है पाकिस्तानियों की जिंदगी में। सबसे बड़ा पैराडाइम पैरालिसिस, पैराडाइम फिक्सेशन, दिमाग रुक जाते हैं, एनालिसिस तो पैरालिसिस हो जाता है लोगों को। ट्रेडिशनलिज्म, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एक्सीलेंस क्या होते हैं? 3। नंबर 1, इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स वर्क। जिसका इनडिफरेंट क्या होता है? केयरलेसनेस। ये जो केयरलेसनेस होती है ये सबसे बड़ा तबाह कर देती है एक्सीलेंस। सेकंड एनिमी ऑफ क्या जी एक्सीलेंस इज अ ट्रेडिशनलिज्म, ब्लाइंडली फॉलोइंग द दादाजी। मैंने एक सीईओ से पूछा, सर आप बिलियन, उसके 10 बिलियन की पाकिस्तान में सर कंपनी बनाई, 10 अरब रुपए की कंपनी केमिकल की, तो बड़ा गरीब घर का बंदा, मेरी आंखों के सामने उसने ग्रो करके 10 अरब की कंपनी बनाई। मैं उसके पास घर बैठा, मैं कहा सर जी एडी बड़ी कंपनी किस तरह बनाया? कहता जी मैं अपने माँ बाप का नाफरमान बच्चा। क्या बोला जी? आज तक तो मैंने 99.9 लोगों ने कहा था मैं माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार बच्चा हूँ। ये कौन सा बंदा है जो माँ बाप का नाफरमानदार निकला है? कहता मेरा अब्बा है कि छोटी सी हट्टी की दुकान, रिटेल का काम करते थे, मैं छोटा स्कूल जाके अब्बा जी की हट्टी पे बैठ जाता था और अब्बा कहता था मेरे पास बच्चा गले पे बैठ जाओ। तो मैं तो 2-4-6 महीने बैठा भी, मैंने कहा अब्बा जी मैंने गले पे नहीं बैठा। कहता नहीं बेटा वो दुकान वाले खा जाएंगे तुझे सारे, है जी तुम्हें खा जाएंगे गले वाले अगर तुम गले पे नहीं बैठोगे। तो कहता मैंने अपने अब्बा को क्या किया, बागी हो गया और मैंने कहा अब्बा जी इधर को 40-50 हज़ार का बाजार से ना अकाउंटेंट बढ़ा ले खुदा के वास्ते, और सिस्टम बना के उसको डेलीगेट कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इस तरह की 4 दुकानें और बनाता हूँ। तो विद इन 5-10 ईयर्स मैं अब्बा जी के नाफरमानी की और आज 10 बिलियन पे लेके गया मैं अपने बिजनेस को। 10 बिलियन, 1 करोड़ से मैं 100 बिलियन पे लेके 1000 करोड़ तक ले गया अपने बिजनेस। तो सर ट्रेडिशनल के अगेंस्ट था वो। एक्सीलेंस क्या होती है? गोइंग अगेंस्ट द टाइट। ठीक हो गया? तो ये है सबसे बड़ा सेकंड एनिमी। और थर्ड एनिमी ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? लिख ले, उसे कहते हैं फियर्स, सेल्फ डाउट्स। जिसको अपने जात पे शक होता है वो कभी एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर सकता। तो एक्सीलेंस इधर है। तो एक्सीलेंस को कौन अचीव करते हैं? जिनको यकीन होता है। आपको बोलते हैं कि जो आजकल का सबसे बड़ा लेटेस्ट टॉपिक क्या है, वो 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर का पहला टूल क्या है? दे अटैक योर सेल्फ बिलीफ। सुन्नत तहजीबे हाजिर के गिरफ्तार, इकबाल कहते हैं आगे धरा में कि सुन्नत तहजीबे हाजिर के गिरफ्तार, अरे गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी, गुलामी से भी बदतर है बेयकीनी। जिंदगी में सबसे बड़ी जो बेयकीनी है ना वो खत्म कर देती है। और एक्सीलेंस को जो आपने इस्लाम की बात की या मैं कुरान की बात करूं या मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो एक ही चीज निकलती है सर कि वो यकीन है सर, वो फेथ है। अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, सारे मेरे साथ, ये एक्सीलेंस की द बेस्ट डेफिनेशन है जी। नाजिया क्या है जी? अगर दस्तक दूं मैं दस्ते यकीन से, जरा सारे मेरे साथ बोले, सारे प्लीज। अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे साथ बोले, अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, अरे डर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से, अरे डर तो क्या हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम वह भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। इनके लिए क्या तो सर यकीन की जब ताकत आती है तो फिर आपको एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए कोई चैलेंज नहीं आता। एक दुआ है, अब ये मुझे क्लोजिंग की तरफ भी है, यूजुअली मैं ओपनिंग में करता हूँ, समझिए आज क्लोजिंग में कर रहा हूँ। सारे हो गए क्वेश्चन? जी हो सर, थैंक यू। इंग्लिश क्लियर करते हैं जी। किसने अच्छा पूछा? हाँ जी, सबसे अच्छा सवाल किसने पूछने का सवाल है? सबसे अच्छा सवाल क्या है जी?
अगर मैं इस्लाम के खिलाफ जाऊंगा तो मेरे पीछे सभी वो हो जाएगा, मुझे वो कहीं जा नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सस्टेन कैसे किया जाता है एक्सीलेंस को। कि किन्होंने पूछा था आपने या एक ही क्लास दोबारा कर दीजिए, वो काश भी है और वो कैश भी है। ठीक हो गया कि आपने सॉरी सर तुसी सवाल ही मैं एक सवाल का जवाब मैं क्लोज करता हूँ। देखिए मैं इधर से नहीं मुझे जाने देना, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन था कि अनफेयर मीन से जो एक्सीलेंस आती है उसके बारे में क्या कहते हैं, ऐसे ही देखिए मैं दो दिन इसमें मेरे एंगल है, क्योंकि मैंने जिंदगी में बताया मैंने खुद फिजिकली मैं क्योंकि 17 साल एक सरकारी कोविडेड प्लेस जिसको हम CSS बोलते हैं और सिविल सर्विस बोलते हैं, मैंने आई सर्व देयर फॉर मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स। ठीक है, मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े इदारों में काम किया, ब्यूरोक्रेसी में रहा, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मैं डायरेक्टर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, पूरे पाकिस्तान का मैं कंट्री हेड था। फिर उसके बाद मैंने कोई 127 पाकिस्तान के इदारों में 2010 के बाद मैंने एक विजिट लिया वहाँ से स्टेट बैंक से और कोई उसमें किया। अभी सारी जो जिंदगी का ये जो कॉर्पोरेट का और ये सरकारी का जो तजुर्बा था उसमें मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो बंदे बहुत ज़्यादा जो होते हैं अनफेयर मीन्स यूज करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो बंदा डिजर्व कर रहा होता है वो पीछे रह जाता है, ठीक है, पीछे रह जाता है। तो ये बड़ा पेनफुल होता है। और वो बंदा जो होता है जो अच्छा वर्कर होता है वो जो होता है, मैं अक्सर सवाल किया करता था कि क्या गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है, तो जवाब मिलता है गधे को अच्छा गधा बनाया जा सकता है, घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर उसको मोटिवेट ना किया जाए तो घोड़ा जो होता है वो गधा बन जाता है। क्या बोला जी? अच्छा वर्कर जो होता है, स्टार वर्कर, वो क्या हो जाता है, वो फिर कहेगा यार इसका तो रिवॉर्ड मिलना ही नहीं। तो तीन चीजें हैं जी, मैं कंपनीज में कहता हूँ, देखिए एक बैड कंपनी कल्चर और एक गुड कंपनी कल्चर में फर्क क्या होता है, 3 और 3R याद रखिएगा। ये आपका जवाब ये जी कि एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए किसी अदारे के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर है सर, ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि वर्क प्लेस के अंदर किसी भी चीज अचीव करने के लिए एक्सीलेंस कल्चर को वो 3 चीजें चाहिए, 3Rs। ये अगर फॉलो करके कंपनी जाती है तो एज अ कंपनी एज अ कल्चर वो सारे ग्रो करते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब ये अनएथिकल होता है तो टाइम के बाद कंपनी का साइज भी छोटा होता है, लोग भी छोटे जाते हैं, कंपनी भी बंद हो जाती है। दे डू नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। याद रखिए, पाकिस्तानी कंपनियां बदकिस्मती से इसलिए मल्टीनेशनल नहीं बन पाती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ 3R। लिख रहे रिसर्च है मेरी, आगे मैंने 10-15 साल ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि मैं खुद HR में रिसर्चर भी था, मैंने इसमें MPhil भी किया। तो मेरा ये जो 3R के ऊपर सारी जिंदगी मैंने गुजारी। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट। क्या बोला जी? जब तक आप अपनी एम्प्लॉइज को, स्टाफ को अपने वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका कभी एक्सीलेंस का ड्रीम कभी पूरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। खाली सैलरी दे देने से नहीं आपको एम्प्लॉय से एक्सीलेंस दे सकते, प्लीज अंटिल यू हैव अ रिस्पेक्ट कल्चर देयर। बड़ा छोटे की रिस्पेक्ट कर रहा है, छोटा बड़े की रिस्पेक्ट कर रहा है, इवन पीएन की भी रिस्पेक्ट। इवन बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर आप कभी रिस्पेक्ट का लेवल देखना हो ना, ये लिटमस टेस्ट है आप लोगों के लिए, ये अल्फाज नहीं है, ये सिमेंटिक्स नहीं है, ये जार्गन्स ऑफ वर्ड्स नहीं है। 2 चीजें हैं कि छोटा बंदा और बड़ा बंदा। इस कल्चर क्या, अगर रिस्पेक्ट कल्चर देखना है ना, ये रिस्पेक्ट कल्चर है, तो जाके उनके रेस्टरूम देखें। ये लिटमस टेस्ट है जी कि आप किसी कंपनी का रेस्टरूम देखें जिसमें CEO भी जाता है और जिसमें एक बेचारा एक नायब कासर भी जाता है। आपको अगर उसकी क्वालिटी सेम है तो समझे कि दे आर एक्चुअली हैविंग रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें तो सब बराबर है ना यार। वॉशरूम जाता हो तो सब बराबर है ना जी, इसमें कोई बड़ा छोटा तो नहीं है जी। नंबर 2 रिस्पेक्ट के बाद क्या जी? रिकॉग्निशन। क्या बोला? आपको पता है कि पाकिस्तानी इदारे में बहुत ज्यादा कंजूसी। वी आर PhD इन क्रिटिसिज्म एंड वी आर नॉट इवन मैट्रिक इन क्या कहते हैं एप्रिसिएशन। हम रिकॉग्नाइज नहीं करते अपने लोगों की, इसलिए एक्सीलेंस उस बंदे से आप नहीं ले सकते। पाकिस्तान, मैं छोटी सी बता देता हूँ कि पाकिस्तान फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है, फौज में, आर्मी में ट्रेनिंग कराता हूँ। ऊपर जो भी करप्शन के मामला का हालात है पाकिस्तान को, लोग फौज के जो अगेंस्ट बोलते हैं वो जरा जनरल लेवल पे होगा। मैंने नीचे मेजर करनल लेवल पे आप देखे जाके वेरी अपराइट गाइस,
ऐसे कभी आपकी लाइफस्टाइल देखी, ठीक है, मैं मेरे अपने छोटे भाई भी हैं फौज में, मैं जाता हूँ, बड़े बेचारों की सिंपल लाइफ होती है। मैं चीज देखता हूँ सर, मैं कहता हूँ ये कैसे होता है कि एक बंदा बाम बांध के अपने टैंकों के नीचे लेट जाए, अपनी जान की कुर्बानी से बड़ी क्या होगी चीज। और पता चला कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिकॉग्निशन का, पैसा नहीं है भाई, क्या जी, रिकॉग्निशन, मॉरल, मोटिवेशन। थर्ड चीज क्या थी, वो है रिवॉर्ड। तो तीन चीजों को इकट्ठा करने से ना, दूसरा नाम बताया, तो तीन चीजों को इकट्ठा करें तो क्या बनता है जी, आपका एक एक्सीलेंस कल्चर एट वर्कप्लेस। क्या जी, रिस्पेक्ट फर्स्ट आर, सेकंड क्या जी, रिकॉग्निशन ऑफ द बेस्ट वर्क। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, टाइमली नहीं किया, तो फिर वो बंदा क्या हो जाएगा, एक्सीलेंस से नीचे। और थर्ड क्या बोला जी, रिवॉर्ड। आपने उसे टेंजिबल रिवॉर्ड्स, क्या उसको रिवॉर्ड देते हैं, जिसके पास रिस्पेक्ट, जिसके पास रिकॉग्निशन, नाज़ी आप लिख रही है क्या, शायद बाद में व्हाट्सएप आ जाए। तो ये तीन चीजों के मिलने से क्या बनता है, एक्सीलेंस कल्चर एट वर्कप्लेस, जहां रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जहां रिकॉग्नाइज ना किया जाए टाइमली, जहां रिवार्ड ना किया जाए प्रॉपर्ली आपके बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो बंदा जैसे रट्टी मारी गई थी वो दोबारा भी वही काम करे। एक्सीलेंट, नॉट एट ऑल, until he will be reinforced with these three key behaviors to sustain। अगर सस्टेन भी करना है तो 3 R को अप्लाई करने पड़ेंगे। एक दफा तो हम ले लेंगे उसे बेस्ट, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप उसको रिवार्ड रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अगली दफा वो तो कंपनी क्या होनी शुरू हो जाएगी, मीडियोक्र, और एक्सीलेंस लोग छोड़ने चले जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, सारे डवार्फ रह जाएंगे। डवार्फ किसे कहते हैं, बोने। सारे पाकिस्तान का पता है नंबर 1 अलमिया क्या है, ब्रेन ड्रेन। क्या बोला, पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे बैंकर्स, अच्छे इंजीनियर्स, कौन ले गया, कनाडा, कौन ले गया, ऑस्ट्रेलिया, कौन, बाकी क्या रह गए, बंदर, जिनके हाथ में माचिस आ गई। सही कह रहा हूं, आपको भी पता नहीं, माचिस बंदर के हाथ में। अच्छा मैं बता रहा हूँ, वो जहाज गिर गया जी पिछले दिनों, अल्लाह करे वो पीआई का जहाज गिरा था, इस तरह एक और जहाज गिरा, उस जहाज में सारे मर गए, एक बंदर भी था। वो बंदर से पूछा, अरे भाई तो तू बता दे कैसे जहाज गिरा था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल ही रहा था। तो वो उन्होंने एक एक्सपर्ट बुलाया एनिमल्स के, उसको ट्रेन किया है नाजिया। वो ट्रेनिंग के बाद उसे पूछा, बताओ भाई जहाज कैसे गिरा, ये जो मुसाफिर थे क्या कर रहे थे जब जहाज गिर रहा था। तो उसने कहा था मुसाफिर कुछ सो रहे थे और कुछ फिल्में लगा के बैठे थे, कुछ गाने लगा के सुन रहे थे। अच्छा, एयर होस्टेस क्या कर रही थी कि वो लिपस्टिक लगा के शीशे के आगे खड़ी थी। अच्छा, वो जो था अपना हवाई जहाज का जो पायलट था वो क्या कर रहा था जी, उन्होंने पी हुई थी और वो नशे में थे। कहता भी जहाज कौन चला रहा था, कहता मैं चला रहा बोलना बढ़िया। ये मैंने पाकिस्तान की कहानी सुनाई, इस वक्त जहाज भी बंदरों के हाथ में। ठीक है, बात हो क्या बोला, बात हो पूछी से बोले, बात हो सारे मेरे साथ, बात हो अगर बात है। अब इसको चेंज करने की तो माजरत के साथ परवीन शाकर के, बात तो सच है मगर बात है हम सही। तो she's my favorite poetess। अब एक दुआ है जी, तो ये क्वेश्चन I answered 3 hours, ओके। और आपका कोई और थोड़ी रह गया था सर, बस एक रह गया। नहीं बट इट्स फाइन, we have to close now। ठीक है, अगर बहुत लेट हो जाएगा। Excellent needs to be shown, वैसे आपने आंसर कर दिया था और it will speak itself। और लास्ट देखिए यार, देखिएगा जब वो सूरज निकलता है, चांद निकलता है, तो बताना नहीं पड़ता ही। एक अच्छा बंदे की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसकी सबसे बड़ी सिफारिश होती है जिंदगी में। मैं आपको अपनी छोटी सी बात बता देता चले, ट्रस्ट मी, ये थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। जब मैं एक पाकिस्तान के बड़े दायरे में काम करता था, तो वहाँ एक पोजीशन की प्रमोशन की बात थी। तो मैं कराची गया था इंटरव्यू देने के, और जितने भी मेरे साथ जो मेरे काउंटर पार्ट्स ले आए हुए थे, किसी का चाचा नेशनल असेंबली का चेयरमैन है, किसी का पापा जनरल है, किसी का ताया वहाँ, और मैं बड़ा ही काम एंड क्वाइट में जाके बैठ गया। दिल हालांकि धक धक करता, ग्रेड 20 की प्रमोशन थी, छोटी मोटी बात नहीं थी, अगला सारा करियर इस प्रमोशन पे डिपेंड कर रहा था। तो मैं अपने चला के अपनी बाहर बैठा हुआ था, जब मेरी बारी आई वो लाल पत्ती से हरी पत्ती हुई, मैं अंदर गया, अंदर 10 बंदे बैठे हुए थे, चीफ प्रेसिडेंट, ये वो साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, पूरा मैंने एक पैनल होता है कि प्रमोशन में इंटरव्यू होता है जो सीनियर पोजीशन के लिए।
कोई एक बंदा नहीं ले रहा होता, उसमें 7-8 बंदे बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते। तो मैं तब मोमेंट आई तो वहाँ का जो डायरेक्टर था, जो चीफ HR था, वो मुझे आके देखता कहता एजाज तुम अभी आज इंटरव्यू था? जी सर आज मैं भी प्रमोशन के लिए ड्यू सर। तुमने मुझे बताया नहीं? मैंने सर बताने की क्या जरूरत नहीं, इंटरव्यू था। आप बायस हो जाते अगर उनको बता देता कि मेरा भी सर इंटरव्यू मेरा ख्याल रखना। हालांकि जितने भी बार बंदे बैठे थे सबके पास ही तबड़ी सिफारिश है। और भी तो पॉलो जी कोई मेरे साथ मेरा यार था, वो मोहन भाई था, कहता मोहनों की रिश्ते बड़ी उन्होंने देखी हो जाने कोई आगे मैं कहा यार अल्लाह मुझे मोहन बना देता, मैं हो जाता सैयद मतलब मैं यार हुआ कहता है अंदर 4 मोहन बैठे हैं। मैं कहा यार थोड़ी बड़ी यार अपने जी थोड़ा टाला लगा है, ਅਸੀਂ तो ये चक्कर चक्के हम तो अपने काम की बेस पे आए। द मोमेंट आई एंटर्ड तो मुझे चीज करता है क्योंकि मैं स्टाफ कॉलेज में था, मैं डायरेक्टर था, तो वो मेरी सेशंस में ना आगे पीछे बैठ जाया करते थे। आई डोंट नो मेरे सेशन चल रहा पीछे दरवाजा था, आगे बैठे थे, मेरे सेशंस अटेंड किया करते थे। तो वो कहते थे यार इस बंदे से इंटरव्यू करेगा, और अपने ग्रुप को कहते थे कि सवाल कर रहा था जी आपने क्या किया ठीक है। और वो मुझे कहते हैं सर 5 मिनट लगे जी, हालांकि बाकी 2 आधा घंटे का हो रहा था। कहता जी जा सब जाओ, लेकिन बाहर जाके ये ना बताना कि आप प्रमोट हो गए हो। अभी ना बताना आधे घंटे सारे निकल जाए इंटरव्यू, लेकिन अभी नहीं बताना, मुंह में उंगली रख लो बस, मुंह में उंगली रोक ऐसे करके अभी इतने किलो। जब अल्लाह पाक की ज़ात होती है क्योंकि आई बिलीव इन खुदा अल्लाह अलमाइटी, जब आपको उस पर यकीन होता है अनफ्लिंचिंग। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज टू यंग, आई डोंट हैव एनी सफारिश थ्रूआउट माय लाइफ, सिविल सर्विस, बैंकिंग, कमीशन, ये वो 6 आई डिड माय मास्टर्स, ठीक है। तो वो जब भी गए कभी ये नहीं हुआ कि सर जी का नंबर प्रति दे दे, आई नेवर गो फॉर वेंट फॉर नंबर्स गेम। मैं नंबर गेम में कोई पढ़ा ही नहीं, जीपीए तो मुझे लाने भेजो जीपीए पे, तो यार मुझे क्या जीपीए का खाना मैंने, अगर उसका बराबर नॉलेज मेरे अंदर नहीं आया, मेरी वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, मैंने इसे 3.5 जीपीए को क्या करना है सारी जिंदगी जी। मुझे 2.8 जीपीए दे दो भाई, मुझे जरूरत नहीं है 3.9 लेने की, अनटिल वो वैल्यू मेरे अंदर क्रिएट नहीं हुई। मैं तो उस्तादों का सर खा के क्लास से बाहर निकाल देता, चलो निकलो बाहर, तू सामने पढ़ाने का क्योंकि टीचर नहीं पढ़ता, उस्ताद स्टूडेंट को तो छोड़े जी, क्लास के बच्चों को वो पावर पॉइंट स्लाइडें अंग्रेजी के अलावा कोई चूस नहीं डाल लेते मुंह में, और पावर कंप्यूटर करके पढ़ा रहे होते हैं। मेरा दिल नहीं करता उधर करूं, हालांकि मैंने 100 स्लाइडें बना के लाया हूं आपके लिए, एक भी नहीं मिला। तो सर वो एक जो कनेक्शन है ना इंसान का, एक इंसान के साथ एक जो दिल का ताल्लुक है, अगर वो डेवलप नहीं हो सका, वो रैपो डेवलप नहीं हो सकी, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नो थ्रू द मल्टीमीडिया स्लाइड्स, इट इज थ्रू द हार्ट टू हार्ट यार। ये जो कम्युनिकेशन होती है इसको पैरा कम्युनिकेशन कहते हैं जी सर। वो परवीन शाकिर का परवीन शाकिर ने परफॉर्मेंस को खुशबू से तशबीह दी है, कहती हैं कि तू तो खुशबू है फजाओं में बिखर जाएगा, तू तो खुशबू है फजाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बेगम के सामने ना बोलिएगा वो वरना वो शक में पड़ जाएगी। इजाजत या ठीक है जी, ये मैं दुआ इसके लाइन ऑफ कर दूं फ्रेंड भाई, ये दुआ के साथ मैंने क्लोज करने जी, और अभी एक फार्मूला शेयर करके देन वी विल रैप अप, ठीक है। फिर हम सारे चाय वगैरह पिएंगे, रिफ्रेशमेंट है ना सर, बड़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट है, और आपने इसमें क्या करना है, सबने दूसरे के कार्ड एक्सचेंज करने हैं, नंबर लेने हैं और एक दूसरे से मिलना है, ये दैट वोटिंग, क्योंकि लोग बड़े तरसे हुए यार, लोग बेचारे 6 महीने घर में बैठ के तंग आए हुए। जैसा एक साइकोलॉजिकल सवाल सर ये हसद और कीना जो है ये बचपन में नहीं होता, हमारे जब बच्चे होते हैं जी पैदा कैसे होता है सर? ये बेसिकली पुफियां पैदा करती हैं। बात हो अगर बात है, अच्छा माँ कभी नहीं कहेगी खाला करेगी, तो हमेशा पुफी का नाम लेगी, अपनी बहन का भी नाम लेगी। आपके लेक्चर से रूह तक फैल गई तासीर मसीहा सर जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, दुआ है जी, इसको कहते हैं पीस प्रेयर, ये आज का एक्सीलेंस का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जी, ठीक है। ए अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ए अल्लाह, ये कोविड के वाले से भी बड़ी जबरदस्त दुआ है, तो अभी कोविड अभी भी पता नहीं कब दोबारा आ जाए, तो इसलिए आप अपने आप को ये महफूज रखिएगा। ये दुआ आप सुबह दोपहर शाम चाय के साथ, दूध के साथ और पानी के साथ भी पी सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। कि अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, कि अल्लाह जिन चीजों को मैं तब्दील नहीं कर सकती या कर सकता है, मुझे उसके बारे में सब्र अता कर। सबसे बड़ा स्ट्रेस है जिसके आता हम जिसको बदलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। हम सारा दिन कुड़ते रहते थे मुशर्रफ के ऊपर, ये क्या हुआ,
कि यार वो चीफ ऑफ आर्मी भी है और चीफ जस्टिस भी है और चीफ एग्जेक्टिव भी है, सब कुछ वही था ना जी। फिर फलां आ गया, फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर इमरान खान आ गए, यार बेचारा क्या है। तो वो हम हर वक्त उड़ते रहते हैं उन चीजों के बारे में जो हम इमरान खान को चेंज कर सकता है, हमें से कोई नहीं कर सकते। तो उड़ने का फायदा कोई, हम सब मिलके भी ठीक है। एक तो पहला क्या है कि उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना उड़े जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, ठीक। सेकंड दुआ है, ए अल्लाह गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। ए अल्लाह मुझे हिम्मत अता कर उन चीजों के बारे में जिनको मैं तब्दील। अब आपने घर जाके एक लिस्ट बनानी है कि क्या तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो तब्दील नहीं कर सकते उसको स्टीवन कवी कहता है एरियाज ऑफ कंसर्न्स, और जिसको चेंज कर सकते हैं उसे कहते हैं एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। जो आपके इख्तियार इख्तियार में है वो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं 5 किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं अपना MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दुनिया की किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ, मैं 5 बच्चों को फ्री पढ़ा सकती हूँ, मैं अपने घर में जो रोटी पड़ी है आधी रोटी एक रोटी मैं खाऊं, एक मैं अपने हमसाये को दे सकता हूँ। ये एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाहे वो बिजनेस क्यों चाहे CSR क्यों। वो है कि अल्लाह मुझे हौसला दे। नंबर 3, ए अल्लाह गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस व्हाट आई कैन चेंज एंड व्हाट आई कैन नॉट चेंज। ए अल्लाह मुझे शऊर, फहम और अदराक अता कर, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ और क्या चेंज नहीं कर सकती हूँ। ये मुझे फर्क की, इसलिए आपने घर जाके 2 लाइनें लगानी है सफे पे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी है। जो चीज नहीं कर सकते वो जो 80% जो टाइम उधर यूज होता है उसको 20% रखें, और 80% टाइम जो हम एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, तो कल से हम उस पर फोकस करेंगे। अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करेंगे तो जिंदगी में आपकी बड़ी बेहतरी आएगी। होता क्या है कि कहते हैं कि इजाज़त स्ट्रेस किसे कहते हैं। स्ट्रेस आजकल बड़ा की वर्ड है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बड़ा फैंसीफुल वर्ड्स हैं, और आजकल कोविड ने तो बात मारी हुई है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ख्वाहिश और हासिल के दरमियानी फासले का नाम स्ट्रेस है। आई रिपीट, हासिल और कि ख्वाहिश को कम कर लो या हासिल को ज्यादा कर लो तो सुकून मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्या है जी, एक अल्लाह ताला का जो कहते हैं जी की मर्जी है और एक बंदे की मर्जी है, दोनों के दरमियानी फासले को डिप्रेशन कहते हैं। जब आप वो फासला कम करते हैं अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी, तो फिर आपको क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड। क्या मिलता है जी। और अगर नहीं करेंगे ये फासला कम, हासिल और ख्वाहिश का फासला, खुदा की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियानी फासले को अगर कम नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलेंस। क्या मिलेगा, एक्सीलेंस। और क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि एक्सीलेंस के लिए पीस ऑफ माइंड जरूरी है भाई। सब्जी मंडी में एक्सीलेंस क्यों होती, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, कोई शायरी नहीं कर सकते आप सब्जी मंडी में खड़े होकर। उसके लिए यू नीड अ थर्ड डिफरेंट अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ माइंड। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। तो क्या है जी, अगर आपने ये जो ख्वाहिश और हासिल का फर्क कम कर दिया, क्या मिलेगा, पीस ऑफ। और अगर नहीं कम किया तो क्या मिलेगा, पीसेस ऑफ माइंड। क्या मिलेगा, चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स। क्या बोला, एंडलेस होप या होपलेस एंड। क्या मिलेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गली मेंटल। क्या होगा, या विक्टिम या विक्टर। क्या होगा, आप या लॉकडाउन, ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन यू। अगर आपने दुआ को पूरा है। नेक्स्ट करें जी, एक फार्मूले में ले आए, फिर हमने क्लोज करना है। ये नेक्स्ट कर दी, ये हो गया था जी एक्सीलेंस। ये देखिए फार्मूला है जी, ये एक्सीलेंस का जो आपने पूछा था, ये मैंने आपको आगे चलिए नेक्स्ट, ये बच्चे ये देखिए जी, ये फार्मूला है जी एक्सीलेंस का कि अगर आपको कैसे एक्सीलेंस हासिल होनी है कि IA प्लस AA मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू IHP। आपने एटीट्यूड के बारे में बात की थी, रस में नीचे का ये फार्मूला याद रखिएगा। ये ब्रायन ट्रेसी की किताब है मैक्सिमम अचीवमेंट, ये उसका सोर्स है, मैंने उसे वहां से लिया है, तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, दुनिया का बहुत बड़ा गुरु था ब्रायन ट्रेसी। ठीक है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा, दुनिया के टॉप 5 में आता है ये बंदा। वो ये कहता है कि आप इंसान के पास क्या है, इनबॉर्न एट्रिब्यूट्स, आइए कि जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो रखा है, टैलेंट रखा है, जो खुदा ने आपको पेंटर बनाया, मैथमेटिशियन बनाया, राइटर बनाया, सिंगर बनाया, पोएट बनाया, वो आपका इनबॉर्न है। ठीक हो गया। उसके बाद जमा क्या किया, अक्वायर्ड। फिर आपने सीखा क्या है, एक वो है जो आपका
रॉ फॉर्म में जो अल्लाह ने आपको बनाया है। याद रखिएगा, इमाम गजाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान 2 दफा पैदा होता है, एक दफा जब उसकी माँ उसे जनती है और दूसरी दफा जब उसको उसका जिंदगी का मकसद रियाफ्त होता है, when he discovers his vision, his purpose of life। तो क्या होता है, और कुरान says many times, दूसरी जगह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, do you think that you are sent purposeless? क्या तुम ये समझती हो, या इंसान ये समझता है क्या उसे बगैर मकसद के पैदा किया गया? जब वो छिपकली थी, याद है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अपने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को तूर में मिलने के लिए, तो क्या हुआ जनाब? क्या हुआ? उन्होंने कहा कि या अल्लाह ये एक बात तो मैंने तेरे से पूछनी है, क्या ये जरा अगर तू छिपकली नहीं बनाता तो तेरी कायनात में कोई खलल पैदा हो जाना था। तो आगे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मूसा अभी थोड़ी देर पहले तेरे से पहले छिपकली पूछ रही कि मूसा ना होता तो तेरी कायनात में क्या फर्क पड़ता। कोई भी चीज एक जरा तक भी, पता तक भी बगैर मकसद के नहीं पैदा हुआ, और उसकी मंशा के बगैर वो उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उस्ताद कहते थे सारी, मैंने एक दफा ना मैं इसमें आजम की तलाश में पड़ गया और मैंने पूछा बड़े उस्तादों से, 100 के करीब मौलवियों के पास, फलासफों के पास, बापों के पास गया, सर इसमें आजम दास से सुना है पढ़ लेना तो उसके अंदर आपके अंदर एक बड़ी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है। तो बड़ी जाके मुश्किल में बता दूं आपको, सर है बता दूं, लेकिन उसकी शर्त होगी आपने, फिर कहते थे कि जी वो आपने 10 फोटो कॉपी करा के आगे बांटनी है। आपने भी हमें तो 100 बंदे को बताया आपने, और ये व्हाट्सएप पे आते कि 100 जगह आके फॉरवर्ड करेंगे तो आपको इतने सवाब मिलेगा। तो सवाब है, तो ये ना बहुत बड़ा जो ना अल्लाह के नाम के अंदर जो ना ताकत है। ठीक है, अब सुबह दोपहर शाम इसका वेट करें, जैसे लोग रोजरी पढ़ते हैं, तो वो मुझे तो साधु ने ये दिया था, वो इस पे आजम मिल गया, उसके बाद तो फिर एक्सीलेंस की ऐसी की तैसी। अब कहीं भी जाएंगे आपको फिर वो ऐसे करेंगे ना जी, वो सरदार जी आ गए ना मैराथन रेस में, सर मैराथन रेस हुई 1000 मीटर की, 10,000 मीटर की, उसमें सरदार जी ने क्या किया, सबसे आगे निकल गए, 10 लाख का मुकाबला जीत लिया। वो एंड पे ना एक जर्नलिस्ट ने आके पूछा, सरदार जी आपकी कामयाबी का राज क्या? वो कहता गाड़ में जाए कामयाबी का राज, एक्सीलेंस, सबको पीछे छोड़ दिया, गोरे नीले पीले काले सारे एथलीट्स, और वो सरदार जी ओलंपिक्स के चैंपियन बन गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। जब पूछा कि आप कैसे, राज क्या है सर सक्सेस का, तो कहता है सक्सेस का राज साइड पे छोड़ो, पहले बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। जब तक इंसान के पीछे वो कॉज WHY ना हो वो कभी नहीं आता। तो ये अक्वायर्ड है सारा ठीक, और जो भी आपका स्ट्रेस टेंशन है, जो मसले है ना जिंदगी में, याद रखिएगा बुरा ना मानिए, सारे सीखे हैं आपने, PhD की हुई है आपने। पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर पता क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है लोकी की कैन। एक्सीलेंस का सबसे बड़ा एनिमी क्या है पाकिस्तान में? लोग क्या कहेंगे, मैं कर। दूसरा क्या जी, वर्ड प्लेस के ऊपर एक्सीलेंस नहीं आती, ठंड। मैं अक्सर लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं ना, ट्रेनिंग आते हैं, मैं कहता हूं भाई क्या लाते हैं, ठंड प्रॉब्लम। मैं क्या मतलब समझा नहीं। और मेरे एक सीईओ ने फोन किया, यार ये वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? आजकल बड़े इंटरनेट पे बड़े लोग ये कोविड में चला रहे हैं। और मैं कहती क्या होता है, ये छोटी छोटी दे देनी चाहिए। मैं कहा सर बुरा ना माना, इतने तो लोग अखा के सामने काम नहीं करते, करो कि नहीं करना चाहिए। वो कितने करना ये भगवान है जरा, ये यूरोप में होता है, वहां के होता होगा, वो भी IT बेस्ड कंपनियों में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी ऐसी होती है, वहां तो भाई अखा के सामने करना मैंने, वो तो आंखों के सामने लोग कहते हैं। और तीसरा क्या ही, और सुनाओ फिर, बिल गेट्स ने जो कीज बनाई थी ना, माइक्रोसॉफ्ट ने जो कीबोर्ड बनाया था, उसमें सारी कीज है। सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने 2 कीज ऐड कर दी, सानू की क्या बोला जी, फिर वो कहते तानू की। ये 5 की वर्ड्स हैं जो पाकिस्तानियों के मैंने 20 साल की रिसर्च में डिस्कवर किए हैं, जो एक्सीलेंस के क्या है, एनिमीज है। क्या जी, एनिमीज। कोई भी काम करो तानू की, फिर सानू की, फिर लोकी की क्या है, ठीक है। और बाकी आखिरी 2 वो हमारे ऊपर पाकिस्तान स्टडी में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो इंडिया, बस इंडिया वाला दुश्मन है बस, इसके बाद सारा पाकिस्तान की 5 मिनट पे चलता है अनफॉर्चुनेटली। लो जी आखिरी क्या जी, एटीट्यूड। इसको साथ क्या बनाया, मल्टीप्लाई किया। ये सारी गुफ्तगू क्या है, एंड पे कंक्लूजन ये है कि आपके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, सब कुछ आ गया, ये एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट विल बी अ बिग डिफरेंस। नेक्स्ट, ठीक है। और ये आपका सारा ये, हाँ जी, शू का मतलब क्या होता है जी,
योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये करें जी, योर ओन अंडरस्टैंडिंग हमने मास्टर जी ने यूं पढ़ाया था कि आपकी अपने बारे में ये जो 5 पॉइंट्स है जी, ये देख लें एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। अगेन इसमें मुझे पूरा दिन चाहिए, लेकिन हो गए नाजिया बार बार इशारा करिए, बस 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 ब्रेक पे पाँव रखें, तो मैं क्लोज करना चाहूंगा। वो ये है, देखिए पहला स्टेप है जी सेल्फ अवेयरनेस। एक्सीलेंस की जर्नी क्या है? एक्सीलेंस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आपने बोला था एक्सीलेंस इन एटीट्यूड, मैं कहता हूं एक्सीलेंस इज जर्नी। क्या है? इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये क्या है जी? पहला क्या स्टेप है जी? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज क्या है जी? मुझे ये बताइएगा कि कौन बंदा अपनी स्वॉट एनालिसिस डेली करता है और लिख के करता है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रोज लिखता है या वीकली लिखता है? नाजिया गवाह है कि रोज का जान सर आके करवाता नहीं कराता एक्सरसाइज, और लोग लड़ते हैं, पेनफुल होता है। याद रखिएगा, इंसान की एक्सीलेंस के अंदर सबसे बड़ी 2 चीजें हैं जो उसको लेके जाती हैं, जो उसे छीन लेती हैं। क्या? अगर आपने एक्सीलेंस अचीव करनी है तो 2 चीजों को, अपने बटन को दिमाग के अंदर से एक्टिवेट कर देना है। क्या? पेन या प्लेजर। इंसान के जो भी चेंज आती है जिंदगी में, याद रखिएगा, या पेन से आती है या प्लेजर से आती है। अगर आपको मिसाल दे दे, पेन और प्लेजर, आप ऐसी उस्मान सा जवान हो गए तो इनकी पुप्पी की टीके कर, इसके अम्मा लेके रिश्ता लेने, उन्होंने कहा अभी बेचारा भी इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़े ही नहीं था, पुप्पी ने इनकार कर दिया, इनके अंदर का झिंझा आ गया, इनका अंदर का देवता से आ गया। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसे हो नहीं सकता। फिर वो इतनी मेहनत की, CSS में टॉप कर गए, पुप्पी वापस आ गई, पेन था, बाद में प्लेजर हो गया क्योंकि अब वो सिस्टर कमिश्नर बन गए, अब पुप्पी पीछे पीछे रिश्ता लेके, ये तीनों आगे हुई। तो सारी जिंदगी की कहानी में पीछे क्या निकला? एक पीनो, एक पेन और एक प्लेजर। बात हो, अगर बात है अब क्या करें यार, ये सारी पीनों की कहानी है, ये पेन की कहानी है। कोई चोट लग जाती है, कोई बिल गेट बन गया, किसी की भी ये स्टोरी सुन लें, यकीन जाने, कोई एंथनी रॉबिन्सन, सबकी पेन और प्राइड की स्टोरीज है। हर बड़ी कामयाब स्टोरी के 2 ही पहलू होते हैं, या पेन या प्राइड। क्या बोला? ये पाकिस्तान की क्रिएशन इज अ स्टोरी ऑफ पेन बट स्टोरी ऑफ प्राइड एज वेल। बोथ डायमेंशंस भी है। क्या कह रहे हैं जी? हर स्टोरी के 2 ही डायमेंशन होते हैं, ये पेन या प्राइड। और चेंज इंसान कैसे होता है? या पेन ज्यादा कर दो या प्लेजर ज्यादा कर दो। और इंसान का बिहेवियर क्या है? आइदर ही सीकिंग, क्या कहा, अवॉइडिंग पेन और सीकिंग प्लेजर। हर बिहेवियर में आपके अंदर ये 2 चीजें पाई जाती हैं। अगर आप थोड़े से इंसान के साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, समझ आ जाती है, तो इंसान के हर एक्शन के पीछे ये 2 चीजें होंगी, आइदर इज अवॉइडिंग पेन और इज सीकिंग। ये सारी कहानी कंक्लूजन किया है। अगर आप एक्सीलेंस पे, अगर आप अपने कहते हैं कि ख्वाब आपके पास है, तो कभी भी अपने क्या कहते हैं गोल्स को, क्या कहते हैं कि छोटा ना करें, ख्वाबों को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को मैग्नीफाई करें। दैट इज उसको छोटा ना करें, वरना गोल्स जो होते हैं ना जिंदगी में बड़े कीमती होते हैं। एक पिंड से, एक देहात से प्यारा लड़का आ गया शहर में, उसने कभी फुटबॉल का मैच नहीं देखा था, फुटबॉल लोग खेल रहे थे और पाँव के साथ ना फुटबॉल, कहते ये क्या कर रहे हैं? कहता फुटबॉल। कहते ये क्या होता है? कहते ये गोल होता है और ना उसमें जाके करते हैं, फेंकते ना, वो जो नहीं होता, तो ये गोल हो जाता है। वो बेचारा घंटा खड़ा होकर कहता है, एंड में उसने कहा यार ये पागल है सारे, ये तो पहली गोल है, इसको मार मार के और गोल कर रहे हैं। जिंदगी में बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिसको गोल का कंसेप्ट पता है, वरना वो बॉल को गोल समझते हैं ज्यादातर लोग। They don't have the real goals in life. They are very disillusionment in their life. जिंदगी के अंदर ना जब से इंटरनेट आया ना, सब चीजें वर्चुअल हो गई हैं, हर चीज ही वर्चुअल हो गई, मोहब्बतें भी वर्चुअल हो गई हैं, हर चीज ही रियलिटी से दूर हो गई हैं। और इतने साइको प्रॉब्लम्स बन गए ना बच्चों के साथ, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स वीक हो गए हैं। वो किसी से सब्जी नहीं खरीद सकता, ये लेवल का बच्चा आजकल कसम से। उसको कहना यार ये बाहर से जाके सेब का जरा रेट करा, निगोशिएट कर, नहीं आएगा उसको। पापा गलत है, गरीब आदमी सारे दे दो ना, जब तुम जवान होगे ना, कमाओगे फिर दे देना। अभी की कमाई में कहता भाई दे दे सारे, गरीब आदमी। और मैं तुमसे ज्यादा सियाना है, रोज की 10,000 की सेल करके जा और मल्टीप्लाई 30 कर लो, कितने बनते हैं? तुझे पता ही नहीं, तुझे MBA करके 25,000 का मुलाजिम नहीं होगा नौकरी देने का। तो डोंट हैव द परसेप्शन ऑफ द रियलिटी। आखिर में क्लोजिंग कर रहा हूँ नाजिया, क्योंकि चीजें इतनी है, अप्रूवल है, उसके बाद कॉन्फिडेंस है, रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन की जब स्टेज आती है, इसको कहते हैं इरफान, जात का इरफान। जब बंदा जात का इरफान हासिल कर लेता है तो फिर एक्सीलेंस उसके कदमों में। ये आखिरी चीज होती है, अपनी दुनिया आप पैदा कर।
घर जिंदों में सिर आदम ज़मीर कुन फोका है जिंदगी, जिंदगानी की हकीकत को कल के दिल से पूछ, जुए शेरा पेश और संगी बना है जिंदगी। अब ये जिंदगी तो आपकी अपनी, आपके खून शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से हर ही हयात अंग की, ये पूरब ये पश्चिम ये चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना, अरे परिंदों की दुनिया का दरवेश मैं के शाहीन बनाता नहीं। तो एक आखिर में उस्ताद ना काफी देर से नाजिया जी को एक साइकोलॉजी की क्लास होती है, उसमें पढ़ा रहा होता है एक यार ये परसेप्शन में रियलिटी में फर्क क्या होता है, परसेप्शन में और क्या फर्क होता है, ये नहीं कि अदराक फहम और हकीकत का क्या फर्क है। तो एक पीछे से एक आरएसएस का बच्चा उठता है, सर मैं बताऊं, मैं कि बच्चे बोलो, कहते सर जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं ये सच है, ये रियलिटी है सर, और जो कुछ अगर आप समझ लें कि हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। थैंक यू वेरी मच। है कभी कभी है हर पल यहाँ